यंग ट्रेडर शो में हमारे आज के गेस्ट है निशित नागर। और निशित नागर, मैं उनको काफी टाइम से ट्रैक कर रहा था और इवेंचुअली मुझे लगा कि ये एक अच्छा काम कर रहे हैं और इनको यंग ट्रेडर शो में इनवाइट करना चाहिए। तो निशित जी, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग एंड बताइए कैसे ट्रेड करते हैं और क्या है आपकी जर्नी। So thank you, Ankur sir, for having me here. It's a great pleasure. और मैं आपको उससे भी पहले से फॉलो कर रहा हूँ। तो I've been tracking you and following you and learning from you. तो मैंने बहुत सीखा है आपसे। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक बहुत ही छोटा कस्बा है हम्म। राजस्थान में, ओके। कोटा के पास। कोटा आप जानते होंगे, इट्स फेमस फॉर एजुकेशन, या इट्स एजुकेशन हब ऑफ राजस्थान जैसे। तो कोटा के से भी कुछ दूरी पर एक बहुत छोटा कस्बा है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। हम्म। और मेरा स्कूलिंग और मेरा पढ़ाई एटलीस्ट टिल ट्वेल्थ मैं यहाँ से पढ़ा। फिर मैं, जैसा कि सब हमारे आसपास वाले जाते हैं कोटा, आई वेंट टू कोटा फॉर माय फर्दर स्टडीज। ओके। और वहां जाके मैंने, कॉमर्स मेरा स्ट्रीम है, तो मैं कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन किया। आई वाज आल्सो परस्यूइंग सीए, बट देन इन द फाइनल्स आई ड्रॉप्ड इट फॉर सम रीजंस। सो ये मेरा बैकग्राउंड तो है यहाँ से। कैसे इंटरेस्ट आया कोटा से इतना दूर? जैसा आपने बताया कि कोटा से भी दूर है, राजस्थान में छोटा सा कस्बा, तो स्टॉक मार्केट में कैसे इंटरेस्ट आया? वहां पे कैसे स्टॉक मार्केट पहुंचा आपके पास? स्टॉक मार्केट, देखिए, इन दिस वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन हम्म। थिंग्स, so talking about trading, I came into trading in 2020, right after corona. ओके। So when the in fact, after the recovery of corona, so when corona fall recovered, हम्म। that was the time I got introduced, because that was the time so many traders got introduced to the market, because people were talking about market and etc. So so let me tell you first that I was in job at that point of time also. So it's about 2020, corona hit, and we were all sent to work from home. So I was working from home, and how I got introduced to trading. So मेरा एक दोस्त था, he was trading options at that time. ओके। So he said that every day or every other day, alternate day, he used to post a screenshot of his profits. I'm making, he would say, I've made 8,000 today, made 12,000 today. And he kept on, and he never posted any loss making trades, only profits. This guy is doing great, right? So I thought that's a good idea. You just have to sit in front of a screen and trade and open a demat account and trade. So I got excited. I asked him, how are you doing it? So he said, like, it's easy and all. So I opened a demat account, looking at that friend. Okay. And I started trading FNO. Put some very small amount at that point of time, very small amount I started with. And as you call it, beginner's luck. I got lucky, हम्म। and I turned that starting capital into 1.8x, or almost I doubled it in few days. And you won't believe how I doubled it is, I would not even look at the chart. मैं सिर्फ स्क्रीन पे देखता कि बैंक निफ्टी is trading at 35,200 and 300 at that point of time. It was trading around that. If it is going down, I would take a put, buy a put. And if it is going up, I would buy a call. And that was a profitable strategy for me for like 4 or 5 days or a week. Then came the time I lost the profit, lost the capital, and the account was down. ओके। And I was in a major setback. And what do I do now? So then came the revenge trading, that अब तो ये जो खोया है पैसा, इसको मार्केट से ही वापस लेना है, right? So so at that point of time also, I was following some YouTube channels, and there was this course I joined for 700 or 900 bucks. He told me about support and resistances and Fibonacci and all those things. So I learned it, and now I'm again confident that I'll go and break it. Now I know the support and resistance. Started taking trades on support and resistance, and they're all going like, so. Again, lost a good amount of money in options.
Then finally I took a break, right? And by the time I took a break, it was already beginning of 2022. Okay. No, 2021. Sorry, Okay. right? Later part of 2020, I started trading, and it was beginning of 2021. So I took a break, and mid of 21, I did not do anything. I just sat there thinking that what do I do? But I had this urge into my system that I need to do something in the market. तो फिर यस सो 2021 में मिड ऑफ 2021 एज आई सेड, तब तक मैं ब्रेक पे था। और फिर मैंने सोचना शुरू किया दैट कौन से और रास्ते हैं या मैं किस तरह से ट्रेड करूं दैट प्रॉफिटेबिलिटी आए। तो अंकुर जी, जो भी मैं इस इंटरव्यू में बात करूंगा, मैं पहले एक बात बता दूं कि दिस इज नॉट समथिंग जो मैंने खुद से डिराइव किया है या मेरा मेरा खुद का अ, अपना स्ट्रैटेजी है, मेरा खुद का स्ट्रैटेजी है। लेकिन ना मैंने इसको जगह जगह से एक्वायर किया है, लाइक मैंने मार्क अडॉप्ट किया है। मेनोविनी पढ़ा। हाँ। तो अडॉप्ट। मैंने देखा दैट यू आर डूइंग गुड। देयर आर सम थिंग्स जो मैंने आप की ट्रेडिंग स्टाइल से ली हैं, विच आई टॉक अबाउट इन द लेटर पार्ट। तो मैं आने वाले पार्ट में बात करूंगा उसके बारे में। देन आई सॉ कि दिस पर्सन इज डूइंग गुड, तो मैंने उनसे कुछ सीख लिया एंड अप्लाइड इनटू माय ट्रेडिंग। सो इट्स अ लॉट ऑफ पीसेस जो मैंने जोड़ के इकट्ठे कर लिए हैं, और हम्म। मैं उनको अपने ट्रेडिंग में यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं फ्री कंटेंट बहुत देखता था। मैंने यूट्यूब देखा। देन मैं मेरे सामने स्विंग ट्रेडिंग आई, कैश ट्रेडिंग, जहां पे एफएनओ की कोई बात नहीं हुई। हम्म। सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि कैश मार्केट से पैसा बन सकता है। सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग दोज पीपल जो उस समय कैश ट्रेडिंग कर रहे थे और वो बहुत अच्छा कर रहे थे अपने लिए। तो मैंने उनको फॉलो किया। फिर मार्क मिनोविनी के बारे में सुना, और जैसे ही मैंने उनके बारे में सुना, आई ऑर्डर्ड हिज बुक। वो बुक मंगाई, वो बुक पढ़ी। और मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी काम अगर आप चाहते हैं करना, तो आपको रास्ता मिल जाएगा और आपको सही लोग भी मिल जाएंगे। अगर आप बिल्कुल सच में इंटरेस्टेड हैं और विलिंग हैं, तो उसी तरह से मैंने ढूंढना चालू किया। आई फाउंड द कंटेंट ऑन इंटरनेट। तो इस तरह मैं कैश ट्रेडिंग में आया। सो 2021 और 2022 मैं कहूंगा कि मैं मेरा सीखने में चला गया। फिर मैं 2022 की स्टार्टिंग में थोड़ा कैपिटल लाया डीमैट में, और मैंने स्विंग ट्रेड करना शुरू किया। मुझे पता था कि मुझे छोटे ही कैपिटल से शुरू करना है, बिकॉज आई नीडेड दैट कॉन्फिडेंस, है ना। क्योंकि मैं लॉस कर चुका था एफएनओ में, तो मुझे चाहिए था कि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं। तो 2022 almost all of it went into learning, and in 2022 itself I got introduced to you, to people on Twitter। जैसे आप मिल गए, ऐसे कई सारे लोग मिले। आई started following Manas Arora and people like many of them, Mark Minovini and those category। One thing, let me highlight this। मैंने किसी उसके बाद, वो जो 700 वाला कोर्स था, उसके बाद मैंने किसी कोर्स में एनरोल नहीं किया। तो एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जिसने मुझे बहुत हेल्प की, वो है ऑब्जर्वेशन। इफ यू आर ऑब्जर्वेंट, तो मुझे लगता है कि आप जल्दी से चीजें स्क्रैप कर लोगे, सीख लोगे, समझ लोगे। तो मुझे लगता है दिस वाज वन थिंग जिसने मुझे हेल्प की, प्लस ऑब्जर्वेंट। और मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये जो भी लोग प्रॉफिटेबल हैं, ये किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, ये इनका माइंडसेट क्या है। वो पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे। मैंने उसको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करना शुरू किया, एंड इट somehow worked for me। So starting 2023 I was now confident। I फिर मैं थोड़ा और कैपिटल लेके आया, फिर ट्रेड करने लगा। एंड यस, 2023 was the year जब मैं प्रॉफिटेबल हुआ by the end of it। Yeah, and it's going good। अब अच्छा चल रहा है। ओके। Now I can say I know या what I'm doing। या बताइए Yes। फिर कैसे ट्रेड करते हैं, व्हाट इज योर लाइक ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या क्या आपने कहाँ से अडॉप्ट अडॉप्ट किया, तो जो लर्नर है जो व्यूअर है वो भी सीख पाए आपसे कुछ।
बिल्कुल. So let me share my screen. ओके. All right. So let's begin with this हम्म. slide. I've prepared a very small slide. यहाँ से हम कोई शुरू इशू करते नहीं, हैं. कोई इशू नहीं, कोई ठीक है. तो in my observation हम्म. मैंने ये पाया कि स्टॉक्स जो हैं उनका एक उनकी चाल का एक सर्टेन तरीका है. हम्म. राइट. सो या तो वो रेंज या तो एक रेंज में रहते हैं या उस रेंज से निकल करके मूव देते हैं, फिर वो एक रेंज में चले जाते हैं हम्म. और फिर उस रेंज का एक्सपेंशन होता है. सो या तो रेंज एक्सपेंशन हो रहा होता है या रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है. 100% एग्री. राइट. नाउ दिस ये जो रेंज एक्सपेंशन है ये दोनों तरफ हो सकता है. या तो रेंज जो है वो ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सकती है या फिर इट कैन ब्रेक द रेंज ऑन द डाउन साइड और ये नीचे आ सकता है. पीछे भी. ठीक है. Contraction is almost like can be similar. We can see it on the chart. Like if you open, uh, let's say any chart. This was my recent trade, coaching shop. So let's take this. So if you see that either stock is in a range हम्म. or if it comes out of the range, it expands like this, एक्सपेंड समझा. right? Then again, I noticed that ये एक रेंज में गया, सॉरी, फिर यहां से एक एक्सपेंशन है. एक्सपेंशन. अब आप चाहें तो इसको किसी भी चार्ट पे एनी स्टॉक कोई भी हम्म. स्टॉक लें, यू कैन वेरीफाई इट योरसेल्फ कि कि कब कब जो है स्टॉक रेंज में जा रहा है और फिर वहां से एक्सपेंशन हो रहा है. एज अ स्विंग ट्रेडर मेरा काम है, मुझे एक्सपेंशन चाहिए. आई वांट टू स्पेक्युलेट कि कब रेंज से बाहर निकल के स्टॉक्स एक्सपेंड करेगा, हम्म. मुझे उस एक्सपेंशन में पार्टिसिपेट करना. दिस इज माय मोटो. सो तो दिस ये पहली चीज थी जो मेरे को समझने में, जो मुझे स्विंग ट्रेडिंग में हेल्प की. हम्म. क्योंकि कि अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा. इफ आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर, राइट, दीज आर सम क्वेश्चंस हम्म. जो आपको हेल्प करेंगे एक बेहतर ट्रेडर बनने में. सबसे पहले इज हु एम आई एन इन्वेस्टर और ट्रेडर. ये माइंडसेट बहुत जरूरी है क्लियर करना. सो मुझे क्लियर था मुझे ट्रेड करना है. आई एम नॉट अ वैल्यू बायर कि स्टॉक कितने के पी पे है तो मुझे उसको लेना है. सो इट्स नॉट अ वैल्यू बायर, मुझे ट्रेडर बनना था. सो दिस इज परफेक्ट फॉर अ trader. If you are a trader, you need range expansions and you need to trade them. Also, so is it clear? It expands, then या. goes on the down. Yeah. If I say this is also a range, a small range, then it expands on the downside, लोअर साइड. right? On the lower side. Now, अब जो मेरा next observation है वो ये था, and I also like heard it and learned it, but I observed it myself, I checked it myself कि भाई जो रेंज एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, उसकी अवधि क्या है, समय का टाइम फ्रेम क्या है, वो कितने समय तक एक्सपैंड करता है और जब वो एक्सपैंड करता है तो कितना मूव करता है. ठीक है. ऑन एन एवरेज. तो इफ यू सी, एक बार में आप किसी भी स्टॉक को लीजिए, 5-6 दिन के एक्सपेंशन के बाद, 5-6 दिन के एक्सपेंशन के बाद ये एक पॉज लेता है, हम्म. कंसोलिडेशन हो जाता है. नॉर्मली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल केसेस, बट नॉर्मली अगर 5-6 दिन का मूव हो गया है तो फिर ये एक पॉज लेगा और फिर शायद ये फिर से कंटिन्यू करे. लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि स्टॉक 5-6 दिन अगर मूव कर गया है तो फिर उसको समय चाहिए थोड़ा हम्म. वापस से मूव करने के लिए, दोबारा एक लैग और ऊपर जाने के लिए. तो
ये एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग थी मेरे लिए, क्योंकि अर्लियर जब कैश ट्रेडिंग में भी जब मैं आया तो मैं ब्रेकआउट्स बाय कर रहा था। वो ब्रेकआउट्स कैसे होते थे कि इस लेवल को तोड़ा तब मैंने बाय किया, राइट। सो आई मिस दिस कैंडल, या फिर ओ, बहुत ऊपर पे मैं बाय कर रहा था बाद में ब्रेकआउट हो जाने के बाद। तो तो फिर इस चीज ने, इस ऑब्जर्वेशन ने मैं मुझे ना एक्सटेंडेड स्टॉक्स फिर मैं नहीं खरीद रहा था। जब मेरा मुझे ये लगा कि अगर 3 से 4 5 दिन का ही मूव है, उसमें से 1 2 दिन निकल ही गया है, तो फिर मैं उस सेटअप को अवॉइड करता। जैसे ये वाला सेटअप है, अगर ये टाइट भी होता 2 दिन, तो फिर क्योंकि ये 3 4 5 दिन पहले ही मूव कर चुका है, तो फिर आई वुड हैव अवॉइडेड इट। दैट्स द सेकंड थिंग, talking about observation. Now, let's move to the next slide, range expansion and range contraction. We are done with that. These questions, who am I? I'm an investor or trader. And what is my expectation from this trade? And how much I'm ready to risk? These are some questions जो हमें ट्रेड में जाने से पहले ही आंसर कर देना चाहिए, राइट? कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस ट्रेड से। लाइक आई ट्रेडेड दिस, सो आई टेक ये वाला एग्जांपल। मैंने इसे ट्रेड किया है। देखिए, स्ट्रैटेजी पे भी थोड़ी बात करते हैं कि अब मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है। मैंने डिसाइड कर लिया मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो कौन से स्टॉक्स हैं जो मैं ट्रेड करूंगा, कैसे फाइंड आउट करूंगा स्टॉक्स। तो सबसे पहली चीज जो है एज अ स्विंग ट्रेडर आई नीड इज अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, अ बाइंग फोर्स इन द स्टॉक। सो इफ यू सी Cochin Ship from 447 to 935, and it is from October 25th to January, around about 3 4 months. In a span of 3 4 months, stock is doubled. This is interesting because there are buyers in the stock. So this comes into my scans मैं आगे जाके बात करूंगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, 100% ऊपर आ गया। नाउ व्हाट आई डू, ये मेरी वॉच लिस्ट में है, आई विल कीप लुकिंग एट इट। अब मुझे चाहिए कि ये कंसोलिडेट करें, राइट। इसमें एक कंसोलिडेशन इस तरह से, रेस्ट पीरियड जिसको हम कहते हैं। और ये जो मेरे चार्ट पे मूविंग एवरेजेस हैं, एक 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज एंड 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। सो आफ्टर दिस अप मूव, जब स्टॉक करेक्ट करता है और वापस से अपने मूविंग एवरेजेस को क्लेम करता है, तब ये मेरी रडार में आ जाए। अब लाइक दिस डे, अब ये यहां है, इन दिनों मैं इसको अपनी फोकस वॉच लिस्ट में ऐड करके रखूंगा। एनी इनसाइड बार और अ टाइट डे अगर मुझे मिलता है, जैसे इफ यू सी ये स्टॉक यहां से आया, करेक्ट किया, यहां से फिर बाइंग आई और स्ट्रॉन्ग बाइंग है, राइट, ऑन गुड वॉल्यूम्स, बिग बार्स। नाउ अभी बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप इन कैंडल्स का प्राइस एक्शन देखें, तो यहाँ पे भी टाइट डेज है। ये 2 दिन के बाद इट इज एन इनसाइड बार, और यहां से इफ इट ब्रेक्स आउट यू कैन बाय, इट्स अ गुड सेटअप। सो इस रेंज को इफ यू प्ले, इट्स अ गुड सेटअप, बट व्हाट इट डज इज इट हिट्स पीपल आउट। नाउ इट बिकम, यहाँ पे जो लोग जिन्होंने बाय किया, वो लोग यहाँ आते आते 3 4 दिन में दे आर मे बी टायर्ड दैट, कुछ लोग बाहर भी हो गए होंगे। सो ये सेटअप नाउ बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे एक इनसाइड बार दिया है, इसने मूविंग एवरेजेस को ब्रीच नहीं किया। नेक्स्ट डे इट इज गिविंग अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इज नथिंग बट, जब स्टॉक, जिस स्टॉक का जो प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है, अगर स्टॉक उससे नेक्स्ट डे ऊपर पे ओपन हो रहा है, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, राइट। तो
यहां पे I took an entry. Now talking about the expectation, जो मैं कह रहा था कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है ट्रेड से। सो अंकुर जी, मैं जो ट्रेड करता हूं वो मोस्टली दो सेटअप्स ही ट्रेड करता हूं। पहला सेटअप है बिग बेस ब्रेकआउट। Okay. एंड व्हेन आई से बिग बेस, एक ऐसा बेस जो एक महीने से ऊपर का कंसोलिडेशन के बाद बना है, राइट? लाइक इन दिस केस, यहां से करेक्शन शुरू हुआ, 31 जनवरी से करेक्शन शुरू हुआ, वापस से जो है स्टॉक सेटअप हो रहा है मार्च में जाके 27th ऑफ मार्च, ऑलमोस्ट 2 months। So much. Yeah. नाउ दिस इज अ बिग बेस फॉर मी। अगर मैं बिग बेस ट्रेड कर रहा हूं तो मैं एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने का कोशिश करूंगा। सो व्हेन आई से माय एक्सपेक्टेशन, आई एम एक्सपेक्टिंग not just 10-15% from this stock. Now I'm expecting a big move. So I'm ready to hold it for longer time. थोड़ा लंबी अवधि के लिए मैं ट्रेड करूंगा। जनरली जैसे मैंने कहा था कि मेरी ऑब्जर्वेशन में कि कोई भी एक्सपेंशन है वो 3 से 5 दिन तक रहता है, तो मेरी जो होल्डिंग का पीरियड है वो भी 3 से 5 दिन रहना चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सपेंशन ही ट्रेड करना है। लेकिन अगर वो बड़े बेस से बाहर निकल रहा है स्टॉक, एक इतना बड़ा बेस है जो 2 महीने का बेस है, अगर इससे बाहर जाता है तो मैं फिर इसको लंबा होल्ड करना चाहूंगा। तो मैंने यहाँ पे कोचिंगशिप में एंट्री लिया और कुछ क्वांटिटी, अब देखिए इन नेक्स्ट लेट्स सी हाउ इट मूव्ड। मेरा एंट्री ये ना, लेट मी सी इफ आई गो टू ट्विटर, जहां पे होगा ये कि मैंने इसको मैनेज कैसे किया। मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो जस्ट अ सेकेंड। हियर इज द ट्रेड। कोचिंगशिप 893 पे मैंने लिया एंड वाज आई थिंक इन द फर्स्ट मिनट, राइट? एंड आई सोल्ड सम ऑन दिस डे। Now, I think around 50% I sold on this day. If you see, on 8th of April at 11:48, I sold some, half here, right? So now this is a move of 29-30% 9%. Yeah. in 5 days. So if I'm getting anything about 25% in 3, 4, 5 days, I would like to book half. With this, we are talking about big base breakout now, right? I want to book 50%. So I booked 50% here. I have 50%. Now I would trail it with this 20 moving average or with any stop loss of this big candle, right? Now my trailing stop loss for the 50% is this candle or breach of 20 moving day average. Now स्टॉक फिर से कंसोलिडेशन में जाता है, जो कि जैसा कि बेसिक्स है, जिस तरह से स्टॉक्स मूव करते हैं। अब ये 30% चल गया है 5-6 दिन में, इसको कुछ रेस्ट चाहिए। ये रेस्ट में गया, इसने फिर से एक टाइट रेंज, ये फिर से एक टाइट रेंज में चला गया है, इफ यू नोटिस, राइट? ये डू यू सी दिस? Yes. या और ये वाली जो इनसाइड बार है, आई ट्रेडेड दिस on above the high of this, I again bought it, और यहां से again for 3 days I captured this move. I had the 50%, added more up till here, Okay. right? So again, this is again
What percentage? If we calculate 21% or even more, 22, around 22% of move in 2 days. Right. Now, this is the second kind of setup which I trade. Pehla, big base breakout, which we understood yahan pe. This is a flag breakout for me. Okay. So अगर मैं flag breakout कर रहा हूं तो मैं 3 to 5 days पे ही stick रहूंगा. I'll stick to 3 to 5 days वाला holding period. अगर मुझे 3 to 5 days में अच्छा मूव मिलता है, अच्छा मूव, when I say अच्छा मूव हो सकता है anywhere between 15 to 30%. अगर मुझे उतना मिलता है, I'm happy to book. तो आई थिंक यहाँ पे मुझे 20, 22, 25% मेजोरिटी ऑफ इट मैंने यहाँ पे बुक किया. 3 days में मुझे ठीक मिल रहा था, यहाँ बुक किया. और जो 20-25% बचा हुआ था उसको एज ट्रेलिंग अगेन विद दिस स्टॉप लॉस. फिर यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बनता है, 2 दिन का टाइट रेंज. आई अगेन रिसेंटली, वेरी रिसेंटली आई अगेन अपडेटेड टू दिस इज ऑन 17th मई. 17 मई को यहाँ पे I again bought it. So do you see one stock offering too many entries? Multiple और, opportunities. है ना, और वो बराबर उतना मूव दे रहे हैं. अब ये 2 दिन, अब ये अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास. यहाँ पे मैंने कुछ लिया था 1366 के आसपास, इफ आई टू बी प्रिसाइज, यस 1366. यहाँ पे मेरा इसका बाइंग है और अभी 1484 है और अभी भी ये मेरे पास है. नाउ लेट्स सी अगेन, अगर ये अगले एक आध दिन में, 1-2 दिन में अगर ये 15-20% का मूव करता है, आई एम हैप्पी टू बुक अगेन द मेजर चंक एंड टेक सम प्रॉफिट्स ऑफ. तो 2 चीजें हो गई, राइट. फर्स्ट इज, लेट मी राइट इट हियर, बिग बेस ब्रेकआउट एंड फ्लैग ब्रेकआउट. अगर बिग बेस ब्रेकआउट है तो फ्लैग ब्रेकआउट के रूल्स भी आई वुड कीप ट्रेडिंग इन दैट एंड आई कीप दैट सम अमाउंट ऑफ शेयर्स जिसको मैं कंटिन्यू करूंगा यहां से लेकर के बाय द टाइम इट गोज अप, जब तक ये चलता जाता है. सो दिस इज बेसिकली मोर और लेस व्हाट आई एम ट्रेडिंग. वी कैन लाइक, yeah, we can see it on other names like IRFC. It's an old trade. ये भी होगी मेरे ट्विटर अकाउंट पे. आई एम नॉट टू एक्टिव ऑन ट्विटर क्योंकि मैं जॉब में भी हूँ, जॉब भी करता हूँ साथ में. तो नॉट नेसेसरली अपडेटिंग सारा जो ट्रेड है जो भी मैं ले रहा हूँ वो सारा हो सकता है ना ट्विटर पे हो. सो अगेन द सेम, देखिए बाइंग फोर्स just in 30 days or 30-35 days stock is up 170%, right. फिर ये करेक्शन में जाता है, अपने मूविंग एवरेजेस को ब्रीच करता है और दोबारा क्लेम करता है यहाँ कहीं, राइट. यहाँ ये मेरी नजर में आता है एंड आई थिंक इस दिन, इफ आई रिमेम्बर, यहाँ की मेरी बाइंग है IRFC, यहाँ पे आई बॉट इट. सेम लॉजिक, लेट मी हाइड द इंडिकेटर्स. जहां पिछले दिन क्लोज हुआ वहां से ऊपर ओपन हुआ, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है. जैसे ही ओपन हुआ इसने प्रीवियस डे हाई को ब्रीच किया ऊपर की तरफ एंड आई एंटर्ड, राइट. लेट मी सी इफ इट्स देयर. 1st of December 2023, 75.70. So this is your 1st of December. Bought it here. It did nothing for 2-3 days. लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बिग बेस वाला ब्रेकआउट ट्रेड कर या स्पेकुलेट कर रहा हूं या मैं उसको ट्रेड कर रहा हूं तो मैं स्टॉक को टाइम दूंगा. फिर मैं 3-4 दिन 5 दिन में बुक करने की कोशिश नहीं करूंगा या मैं बुक करने का मोटिव नहीं रखूंगा, मैं टाइम दूंगा. तो इसने ब्रेकआउट किया अगेन. आई थिंक मैंने कुछ यहाँ सेल किया एज इट वाज ऑलरेडी अप 25-30%. लेट्स सी
कितना ऊपर था, यहाँ कहीं पे, या आई डोंट रियली रिमेम्बर, और वो अपडेटेड भी नहीं है, बट ऑन अ मूव ऑफ अराउंड 30% आई बुक्ड हाफ, and that the other half continued, and it again started setting up यहाँ पे. ओके, निश्चित जी, विथ योर डे जॉब, आपके जॉब के साथ आप कैसे मैनेज करते हो? लाइक आप मार्केट को चेक करते रहते हो डे टाइम में, या फिर आपका स्कैनिंग कैसे रहता है? लाइक कैसे आप स्टॉक पिक करते हो और कैसे एंट्री रहता है? क्योंकि मेनली जो मोस्टली जो जॉब के साथ ट्रेड करते हैं उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि भाई कैसे करना है, क्योंकि आप अपने काम में बिजी हो और स्टॉक को फिर कैसे बाय करते हो। तो हाउ, लाइक आपकी एंट्री कैसे रहती है, और आपके जॉब पे क्या अलाउड है मार्केट देखना या फोन यूज करना? क्योंकि कभी कभी ऐसे भी कोई केसेस है कि जहाँ पे फोन यूज करना भी अलाउड नहीं, तो वो भी विथ डे जॉब कैसे मैनेज कर सकते हैं? Again, it's a nice question. तो जॉब के साथ, सी, क्या होता है कि मैं स्कैनिंग का जितना भी काम है वो डे टाइम में करना ही नहीं है, जो भी एनालिसिस है इट इज बिफोर द ट्रेडिंग डे. तो या तो मैं एवरी इवनिंग जब मैं अपना जॉब का काम खत्म करके बैठा हूं तो रात में आई गो फॉर स्कैनिंग, आई स्कैन द स्टॉक्स, और वहां पे मैं सेटअप्स ढूंढता हूँ. अगर सेटअप्स मिल रहे हैं तो आई ऐड इन, लाइक ऐड देम इन द वॉच लिस्ट, और फिर वो वॉच लिस्ट मेरी रेडी है. मेरा जो सेटअप का एनालिसिस है वो एक दिन पहले ही हो चुका है. मैं सुबह दिन में बैठ के स्क्रीनिंग नहीं करूंगा ट्रेडिंग आवर्स में. सो आई नो, अगर कल मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल 31st 30th नवंबर, मुझे पता था कि अगर मुझे इसमें स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिलता है तो आई वांट टू पार्टिसिपेट, राइट. तो एक एक दिन पहले ही वो सेटअप सिलेक्शन होके वॉच लिस्ट में चला जाता है. हम्म। नेक्स्ट डे आई जस्ट हैव टू पुट प्लेस अ बाय ट्रिगर अबाउट 75.7 50. तो ठीक वही है. पूछ रहा हूँ कि तो यू पुट योर जीटीटी ऑर्डर कैसे आप फिर क्योंकि आप अगर आप अपने ऑफिस पे जा रहे हो या ऑफिस में बिजनेस से कि 30 नवंबर को आपने डिसाइड कर लिया कि IRFC आप कल बाय करोगे, तो हाउ विल यू बाय? आपका बाय ऑर्डर कैसे होगा इसमें अंदर? तो ये दोनों तरीके हैं. मैं कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं जीटीडी प्लेस कर देता हूँ ओके। अबाउट 75.50. तो अगर इफ इट ट्रिगर्स तो वो बाय हो जाएगा. और माय ऑफिस, मेरा जो ऑफिस का टाइमिंग है ना, वो जो शिफ्ट टाइमिंग्स है वो वेरी करते हैं, बिकॉज इट्स मल्टीनेशनल कंपनी एंड इट्स एन ओवरसीज कंपनीज फॉर व्हिच आई एम वर्किंग. तो सुबह में 1 घंटा फ्रॉम 9 to 10 आई कैन एलोकेट टू ट्रेडिंग. तो ओके। जब मेरे पास वो 1 घंटा होता है तो उसमें मैं मैनुअली भी आई पंच द ऑर्डर्स. मैंने देखा, यस, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है, फर्स्ट फ्यू मिनट्स इट्स गोइंग अप एंड रीचिंग द हाइस. आई मैनुअली एंटर, always on limit price, not on market price. So on limit price, I enter at limit price, and then जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मैंने ट्रेड अंडर किया. नाउ अगर मैं एक दिन में अंकुर जी 2 से ज्यादा स्टॉक्स में नहीं काम करता, मोस्टली 2 ही होते हैं. वेरी रेयरली ऐसा होता है कि मैंने तीसरा कोई स्टॉक बाय किया एक ओके। ही दिन में. हाँ. तो अगर मुझे मेरे 2 स्टॉक्स मिल गए हैं पहले 1 घंटे में ही, तो फिर आई जस्ट कीप द फोन, द सिस्टम अवे, एंड गो ऑन माई ऑफिस सिस्टम. और मैं अपने ऑफिस के सिस्टम को ऑन करूंगा, अपना ऑफिस का काम करूंगा, ओके। विदाउट लुकिंग मच एट द ट्रेड कि वो क्या कर रही है. इंट्राडे तो पहले ये मेरे साथ बहुत हुआ. मैंने ट्रेड ली, ठीक है. अब ट्रेड लेते ही आई एम लुकिंग एट P&L, or and I'm looking at intraday chart of 15 minutes, right? Up stock is making this negative candle in 15 minutes. I get this urge in my system कि भाई मैं ट्रेड काट देता था. अब वो 15 मिनट चार्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है. मैंने ट्रेड लिया है 1 डे चार्ट को देख के, मैं उसको कट कर रहा हूँ. ठीक है. तो दैट्स वाई ये चीज मैंने ऐड किया था कि भाई आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है. तो इस इन क्वेश्चन से क्लैरिटी आ जाती है. आपको हर वक्त पता होता है कि आपने ट्रेड लिया क्यों था, हम्म।
जब मुझे पता है कि मैंने 3 से 5 दिन के लिए लिया है, राइट, और ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं काटूंगा, अगर वो बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन देगा, अगर मेरा जो स्टॉप लॉस सेट कर रहा है, तब तो एनीवेज I'm out। बट वो इंटरफियरेंस जो है, माइक्रो मैनेजमेंट जो है, वो इन क्वेश्चन से बच जाता है। इफ यू नो आई एम एक्सपेक्टिंग, मुझे पता है अगर फ्लैग ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे 15 से 20% का या 25% का हम्म, एक्सपेक्टेशन है 3-4 दिन में, हम्म, ठीक है, आई नो इट। तो सेकंड डे पे काटने का अर्थ क्यों, राइट? मतलब ही नहीं है सेकंड डे पे उसको, उसका चार्ट देखने का मतलब बनता है तब जब वो एक बड़ा रिजेक्शन कैंडल अगर फॉर्म कर रहा है, तो यस ऑफ कोर्स। लेकिन अगर ऐसा ऐसा एक कैंडल है, समझिए, ऐसा एक कैंडल क्रिएट कर, इट इज नॉट मच ऑफ अ वरी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगले दिन अगर तीसरे दिन भी ये नीचे आएगा तो मैं इसको नीचे पे काट दूंगा। यही होगा कि हम्म। मेरा प्रॉफिट 15-20% का जो एवरेज टारगेट है वो नहीं अचीव होगा, तो कोई बात नहीं, राइट? अ, तो जब आपकी जी, एंट्री हो जाए, लाइक जब आपकी एंट्री हो गई, लाइक एज यू सेड के 9 से 10 बजे तक आप टाइम अलोकेट करते हो, क्या कभी ऐसा होता है कि यू गेट दैट अर्ज कि भाई जाके चेक कर लो कि क्या कर रहा है मेरा स्टॉक? ऐसा कभी होता है? क्योंकि ये मैंने सुना है कि जो मोस्टली जॉब से ट्रेड करते हैं उनका ये प्रॉब्लम कि भाई सर, मैं ट्रेड ले लिया, लेकिन बाद में ये मन में रहता है ना कि भाई जाके देखूं कि क्या मेरा स्टॉक जो मैंने सुबह बाय किया था वो क्या कर रहा है, ऊपर गया नीचे गया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? यस डेफिनेटली। और पहले तो बहुत ज्यादा होता था, अब थोड़ा कम हो गया है। नाउ आई एम नॉट चेकिंग इट एवरी 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, तो ऐसा नहीं है अब। मैंने ट्रेड लिया, 1-2 घंटे बाद जाके मैं आई वुड सी कि व्हाट इज गोइंग ऑन, दैट टू। मैंने अब कैसा किया है, पहले मैं P&L जाके देखता था कि स्टॉक ब्रोकर जो है मेरा, वो जाके मैं चेक करता था कितना प्रॉफिट चल रहा है, क्या हो रहा है। अब मैं सिर्फ एक चार्ट देख लेता हूँ जाके, उसको ट्रेडिंग व्यू में सेव करता हूँ, मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन है, मैं ट्रेडिंग व्यू में जाके देखता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे। आई डोंट सी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, और अगेन टू अवॉइड द माइक्रो मैनेजमेंट, तो मैं वो देखता हूँ कि स्टॉक व्हाट इज इट डूइंग, इट्स डूइंग गुड, आई विल अगेन कीप इट अवे एंड स्टार्ट वर्किंग। तो यस, अभी भी मैं देखता हूँ, बट जस्ट फ्यू टाइम्स, लाइक 1-2 टाइम्स और मैक्स, क्योंकि क्लोजिंग पे तो देखना ही है। एट हम्म। 3:30 आई वांट टू सी, सो अराउंड 3:15 to 3:20 वाला टाइम, I have a look if whether it is giving a good close or average close or a very strong closing, how it is closing। बीच में उतना नहीं मैं देखता। एंड हाउ यू डील, जैसे कि कभी कभी ऐसा होगा ना, नॉट ऑल द टाइम, बट आपने ट्रेड ले लिया, जैसे कि यू आर इन द ट्रेड और आप चेक नहीं कर रहे, और कभी मार्केट में एक पुल बैक आ गया या एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ गया, तो आप जो प्रॉफिट बना रहे थे उससे काफी कम, जैसे कि आपका कोई स्टॉक 15% ऊपर था, कभी कभी आपको 6% पे भी बुक करना पड़ा या एग्जिट करना पड़ा, हाउ यू टैकल विद दिस सिचुएशन? वो दैट फॉर ऐसी सिचुएशन के लिए अलर्ट्स हमारे पास है। तो देखिए, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, मैं भूल जाता ये बताना। सपोज मैंने किसी दिन लिया, सपोज मेरी बाइंग इस दिन की, हम्म। नाउ स्टॉक इज कंसिडरेबली अप इन फर्स्ट 2 आवर्स, मैं 1 घंटे बाद आया, 1.5 घंटे बाद आया, 2 घंटे बाद आया, मैंने देखा स्टॉक अच्छा 5-6% चला गया, तो फिर मैं उसके कैंडल के 50% पे एक अलर्ट डाल दूंगा ट्रेडिंग व्यू में, ओके, गुड वन। या कि अगर इस कैंडल का 50% से नीचे जा रहा है स्टॉक, तो मैं आई वांट टू हैव अ लुक कि भाई क्या हो रहा है। तो जो भी कैंडल फॉर्म किया होगा इन द बिगनिंग 6-7-8% का, नाउ आई वांट टू हैव अ लुक, देन इट, फिर जरूरी नहीं है कि मैं उसको वहां पे कट कर दूंगा पोजीशन को, बट देन आई विल अगेन सेट अप एन अलर्ट ऑन द लोअर पार्ट, लाइक समवेयर एट माय बाइंग लेवल। अगर वो मेरे बाइंग लेवल को भी ब्रीच कर रहा है 6-7% ऊपर जाने के लिए, तो शायद मैं थोड़ा एक्सपोजर कम करूं, या फिर मैं पोजीशन काट दूं, दैट डिपेंड्स ऑन द सेटअप एंड ऑन द मार्केट कंडीशंस। सो हम मैं यही कह रहा था कि ये जो बिग बेस ब्रेकआउट्स हैं, राइट, दे गिव अ बिग मूव which we can capture in a capture like I showed in coach and chef, like in a IRFC, ओके। right? There is one more stock I traded. It was, as far as I remember, Tata Invest, right? So
So let's talk about allocation a bit here. I have the mark, right? ओके। So if I pick it up again, stop in an uptrend, right? But until here, I see the uptrend of this much. It was an uptrend. My buying was, sorry, yeah. So stock was not doing anything for a long time. Yeah, it was a big range. Suddenly we see an expansion. This one. Yeah. Do you see my line? या तो यहाँ पे expand करता है, goes up around 40-45% on good volumes. यहाँ पे volumes आने लगे हैं अच्छे, ठीक है। तो ये मेरे स्कैन में आया, इसने करेक्शन दिया, इसने फिर अपने 20 मूविंग एवरेज को क्लेम किया। यहाँ ये मेरी रडार पे, इन दिनों मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। एंड जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, इट्स एन अक्यूमुलेशन, बहुत सारे लोगों से सीख के समझ के, इट्स एन अक्यूमुलेशन। तो ये रहा सर आपका लेट स्टेज इनसाइड बार, जिस तो ये मैंने आपसे सीखा और आपके चैनल से सीखा। यहाँ पे मैं, ये अब मेरे रडार में है। ओके। अगर ये मुझे एक दिन, अगर ये मुझे टाइटनेस देता है, आई नीड अ टाइट कैंडल, एक स्मॉल रेंज देता है विच इट गेव, यहाँ पे ये एक छोटी कैंडल बनी, एक इनसाइड बार बना, विच ये मैं सीखा आप ही के वीडियो से, जहां पे आप अपने लेट स्टेज इनसाइड बार के आपने काफी वीडियोस किए हैं, उसका स्कैन भी आपने दिया है, विच आई रेगुलरली यूज। तो इस कैंडल के हाई पे, नॉट इवन हाई, आई थिंक जैसे ही आप अगर इस कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा विक है, बहुत छोटा, नीचे की तरफ, ठीक है। ये नीचे गया लेकिन इमिडिएटली ऊपर जाने लगा। तो आई थिंक आई स्टार्टेड बाइंग इट अराउंड 30 to 80 के आसपास। यहाँ कहीं मैंने इसको बाय, मैंने डे हाई ब्रेक करने का वेट भी नहीं किया, बिकॉज ये एक छोटा कैंडल था। और शायद मैंने डे हाई पे और ऐड किया हो, आई डोंट रिमेम्बर, लेट मी सी अगर ये ट्रेड भी अवेलेबल है। यस, 17 नवंबर 3280 पे 2% के एसएल के साथ मैंने इसको बाय किया, छोटे एसएल के साथ, क्योंकि ये बहुत टाइट हो गया था यहाँ पे, ठीक है। और मेरा जो एसएल है वो जनरली यही होता है, इट्स 2%, 3% और 1%, और वो डिपेंड करता है सेटअप कैसा है और मेरी एंट्री कैसी है, ठीक है। तो यहाँ मुझे ठीक एंट्री मिली, मैंने 2% का स्टॉप लॉस रखा। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सपोजर के बारे में भी बात करता हूँ, ओके। ठीक है। तो एक्सपोजर के लिए अंकुर जी मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे कुछ ट्रेड्स जो हैं, पहले जो पिछले कुछ ट्रेड्स हैं, अगर वो अच्छा कर रहे हैं और मुझे उनसे प्रॉफिट मिला है पिछले कुछ ट्रेड से, तो आई वांट टू गो बिग इन साइज। ओके। प्लस अगर मुझे दो तरह से एक्सपोजर की बात की जाती है, कहीं लोग जो हैं वो कहते हैं कि प्रोग्रेसिव एक्सपोजर होना चाहिए, ऑन द वे अप यू की आप ऐड कर रहे हैं स्टॉक को, वो भी सही है, वो भी मैं करता हूँ, लेकिन वो कब करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं इतना बड़ा बेस का ब्रेकआउट में अगर ट्रेड कर रहा हूँ, तो फिर मैं अच्छे साइज से जाना चाहता हूँ, क्योंकि क्योंकि ये एक बड़ा मूव है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर एक बड़े मूव की अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसको साइज करते हैं तो जो पोर्टफोलियो पे आपकी इम्पैक्ट आएगा वो भी बड़ा होगा, वो अच्छा होगा, ठीक है। यू विल गेट गुड गेन्स, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको साइज किया, आई थिंक मैं 20-25% मैंने इसको साइज किया था ऑफ माई अकाउंट साइज, एंड इन नेक्स्ट 3 days इट इज अप, आई थिंक 40% अराउंड, यहाँ तक इट वाज अप 40-42%। सो दो चीजें यहाँ पे मैं नहीं बात करूँ। पहला तो एक्सपोजर मैंने अच्छा रखा, बिकॉज कपल ऑफ ट्रेड्स वर्क वेल फॉर मी, मार्केट वाज डूइंग वेल एट दिस टाइम, एटलीस्ट फॉर मी आई वाज डूइंग गुड, तो मैंने इसको अच्छा साइज किया। अगर मुझे 3 से 4 दिन में ही अगर जो मूव है वो मुझे 30-40% से भी ऊपर का मूव मिलता है, 30-40% का भी मूव मिलता है,
I want to book majority of my profit. हम्म उसका रीजन है क्योंकि ये इतना तेज चला गया है, हम्म 40%, अगर 3 दिन में ही चला गया है, तो ये एक यूजुअल से बड़ा मूव है। जनरली इट्स 20, लाइक 15-20%, मैक्स 25%। अगर उससे भी ऊपर जा रहा है तो ये मूव जो है वो जनरल मूव से ऑलरेडी आपको जो आपने सोचा था कि इस बड़े बेस को मैं बड़ा मूव कैप्चर करूंगा, इट इज हम्म ऑलरेडी अ बड़ा मूव इन इटसेल्फ। फॉर अ स्विंग ट्रेडर ये बड़ा मूव ही है, राइट? सो आई सोल्ड अराउंड 75% और 75 to 80% here on हम्म this day, एंड केप्ट दैट 20% जस्ट फॉर ट्रैकिंग इट, क्योंकि एक बड़े बेस से बाहर आ रहा था तो मैंने वो 20% रखा। ठीक है, इट इज देयर विद मी। नाउ स्टॉक गोज इनटू कंसोलिडेशन, अगेन जो कि नेचुरल है, हम्म राइट? आई वांट, अब देखिए, ये वाली जो कैंडल है, हम्म इस कैंडल पे इट थ्रू आउट, ये इट शेकन आउट पीपल। ओके 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच कर दिया इसने, लेकिन आने वाले दिनों में कोई भी फॉलो अप सेलिंग नहीं आई और वापस हम्म अपने 20 मूविंग एवरेज पे स्टॉक आ गया है। हम्म अगेन, बिकॉज आई एम सीइंग इट एवरी डे, हियर कम्स द टाइम। नाउ लेट मी शो यू। I think somewhere here. Here is my second entry. On this, on the breakout of the small ओके range. आई हैव वन क्वेश्चन। क्यों इसके Yeah. पहले भी तो एक ये कैंडल एक एक्सपांशन छोटा सा ही है, इफ यू कैन सी आफ्टर, उससे This, पहले जो ग्रीन कैंडल नहीं उसके पहले, हाँ वो, व्हाई नॉट देयर, क्योंकि yes, वहां पे भी तो सेटअप अच्छा बन सकता, व्हाई नॉट देयर? yes, I could have traded it there, and definitely it happens with me. हम्म Like fortunately or unfortunately, I did not trade it. Probably I don't know the reason. Probably I was occupied or stuck or हम्म not sure. शायद मैं busy रहा होऊंगा हम्म या मैंने देखा भी होगा। हम्म I don't remember exactly कि क्या हुआ था, बट ऐसा होता है कि इट्स अ गुड सेटअप। अगर शायद अगर मैं एक्टिव होता तो मैं यहाँ लेता, नो डाउट अबाउट दैट। ओके इट्स अ वैलिड सेटअप, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मैं स्टॉक को यहां देख रहा हूं, हम्म यहां पे, तो और अगर मैं अवेलेबल हूं, तो देर इज नो चांस दैट आई वांट टू मिस इट, क्योंकि यहां पे इट गिव एन एंट्री, हम्म यहां लोगों को फिर इसने बाहर इस कर कैंडल के लो को ब्रीच किया, फिर बाहर किया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया और यहां टाइट हो। आई डोंट वांट टू मिस इट एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अब यहाँ पे लोग कम होंगे जो हम्म जो सेलिंग लेके आएंगे या जो स्टॉक को बीच बीच में सेल करेंगे। तो जो, अगर अब ये ब्रेकआउट करता है तो द मूव विल बी स्मूथ, ज्यादा स्मूथ होगा। इस तरह से नहीं करेगा। इसके मैं आपको और भी एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और हैं शायद जो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे कई सारे हैं कि हम्म अगर इस बेस में एक बार ऊपर जाता है, फिर इफ दे आर शेकिंग आउट पीपल, देन कमिंग अप एंड देन सेटिंग अप अगेन, सो आई वांट टू डेफिनेटली बाय इट। सो आई बॉट इट अराउंड 4650 or something, and again in 3 days it's up 20, good 27, 28, 30%, यस right? So now I want to take 50%, and then it went into, so I booked some 50% on this rejection of probably somewhere here. Let me stop this. Sorry. And the rest of the 50%, when it went into 5% circuit limit, हम्म I think on one of those upper circuits, I got out. I don't want to stay because the 5% distribution circuit, yeah, it can come down. So in one of those circuits, I closed the entire trade and was out. Right. क्योंकि वो 5% सर्किट में अगर नीचे आएगा तो वो हम्म निकलने नहीं दे, एग्जिट का मौका दे। आप बाहर नहीं आ पाओ। तो जैसे ही वो 5% सर्किट लिमिट में गया, मैं बाहर हो गया, राइट। ये मेरा रिसेंट ट्रेड है। जो मैं कह रहा था कि ऐसा सेटअप मैं नहीं छोड़ना चाहता, वो मैं क्या कह रहा था। हम्म नाउ सी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा मैंने यहाँ भी ट्रेड किया है, हम्म यहाँ मैंने ट्रेड किया है
अगेन सेम लॉजिक, अप ट्रेंड, फिर इसमें करेक्शन आया, फिर ये सेटअप हो रहा था और इस कैंडल के ब्रेकआउट पे, इस रेंज के ब्रेकआउट पे आई, बॉट इट एंड एंजॉयड अ मूव ऑफ अराउंड 20%, 3 to 5 days। फिर मैंने रिमेनिंग जैसे 50% पोजीशन रखा था, वो यहाँ कहीं पे बाहर हो गया। तो फॉर 50% पे आई मेड 22%, एंड देन दी अनदर 50% शायद वो कॉस्ट पे ही कट गया था या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। बट देन इट अगेन स्टार्टेड सेटिंग अप। अब जो मैं पहले कह रहा था, यहाँ कहीं पे भी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, यहाँ कहीं पे आई वाज अगेन स्टार्टेड बाइंग इट। और ये मेरा प्रोग्रेसिव अक्यूमुलेशन था, क्योंकि मार्केट जो है वो करेक्शन के बाद ठीक हो ही रहा था। तो ये कुछ मेरी इनिशियल ट्रेड्स थी, तो मैंने प्रोग्रेसिव एक्सपोजर चालू किया। इफ आई टेल यू, यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। तो यू आर नॉट, आप वहां पे ब्रेकआउट ट्रेड नहीं देख रहे, यू आर लुकिंग टू बिल्ड अप अ पोजीशन, ठीक है, आई एम राइट? यस, आई एम लुकिंग टू build up a position. Sorry. I think this is, see, I've been accumulating JSW Infra for last few days. These days, I'm speculating a move. So I'm just adding small quantities, right? So, sorry. Here I started adding some, and then probably I was out on this day, हम्म। right? It threw me out. Big red candle. या So I didn't lose much because as adding तो कॉस्ट के आसपास या बहुत थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा और मैं बाहर हो गया। लेकिन इसके बाद देखिए फिर से फॉलो अप सेलिंग नहीं है, जबकि मार्केट सेल ऑफ में था हम्म। इन दिनों, राइट? On this red day, if you see Nifty 500 or any index, it made a downside red candle, ठीक है, इंडेक्सेस। लेकिन इसने ये इसी रेंज में रहा, और जैसे ही मार्केट थोड़ा रिकवर करने लगा, इट स्टार्टेड शोइंग स्ट्रेंथ। तो आई थिंक मैंने फिर जो प्रोग्रेसिव एक्सपोजर की बात है, मैंने फिर इसको यहाँ लिया ऑन दिस डे। सो ये भी मेरे ट्विटर पे होगा। लेट मी सी, 14th of May मैंने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ऐड किया एट 247.25, यहाँ पे 247.25 पे आई एडेड। फिर अब देखिए, अब आप इस सेटअप को देखेंगे तो इट इज समथिंग लिटिल सिमिलर टू टाटा इन्वेस्ट जो हमने देखा। एक हम्म। बड़ा बेस है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा शेकआउट हुआ, फिर से आया, फिर एक स्मॉल डे, और यहाँ पे मैं आई एडेड मोर ऑन दिस डे। ये भी वहां पे अपडेट होगा मेरे ख्याल में। यहाँ पे आई एडेड at 363.5 and the stock is up. So I have two entries in the stock, big base, coming out of a big base, almost breaking up. If it works fine for me, I think अगर अगले 1-2 दिन में ये मुझे अच्छा मूव देता है, तो मैं कुछ बुक करूंगा और ओके, बाकी कुछ करते फिर से कैरी करूंगा, और फिर सेटअप होगा तो जो बेचा है वो फिर से खरीदूंगा। हैं। सो ये रिपीटेड एक प्रोसेस है जो मैं कर रहा हूँ मोस्टली ऑल, सारे ही स्टॉक्स में जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ। वन वन मोर एग्जांपल आई रिमेम्बर, ये भी बहुत रिसेंट ट्रेड है। आई एम this one, I have two entries in this, right? Coming out of a big base here. Now this is not a small candle, but again this is something that, do you see the strong start here? It gapped up after running. So this is an earning play I played, but base भी है. I'm not ignoring the base. So to make sure that I'm not buying an extended stock, तो ये बेस से बाहर आया, इसने यहाँ पे स्मॉल डे दिया, छोटा इनसाइड बार दिया, तो मैंने और ऐड किया। अभी ये मेरे पास ये मेरा रनिंग ट्रेड है, चल रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोस। सो एक दैट्स मोर और लेस व्हाट आई एम डूइंग। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जब जैसे बताया कि ये अर्निंग पे गया, तो आप क्या
फंडामेंटल्स देखते हैं कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले, स्टॉक के क्या फंडामेंटल है, पी या अर्निंग या वो सारी चीजें आप चेक करते हैं, या सिर्फ आपका जो डिसीजन होता है वो ओनली बेस्ड ऑन चार्ट रहता है? अगेन गुड क्वेश्चन। क्योंकि मैंने शुरू में व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने शुरू किया था, तब मैं प्योरली टेक्निकल्स ट्रेड करता था। मैं फंडामेंटल्स मुझे देखना मुझे पता था, बिकॉज आई एम कॉमर्स गाय, आई नो। बट शुरू में मैं सिर्फ प्योरली मैं टाइटनेस ही ट्रेड करता था। मैं कभी नहीं देखता था कंपनी के फंडामेंटल्स। बट रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, मैंने ये शुरू किया है कि मैं फंडामेंटल्स भी जाके देखता हूँ। ओके। उससे उससे फर्क ये आया कि उससे कन्विक्शन बिल्ड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे थोड़ा बहुत खराब दिखेगा और सेटअप अच्छा है तो मैं छोड़ दूंगा उसको। ओके। सो फंडामेंटल फॉर मी इज नॉट अ मस्ट, लेकिन वो एक कन्विक्शन ऐड करने के लिए इट्स एन एड ऑन। तो ओके। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, हम्म। लेकिन अब मेरा जो नेक्स्ट जो लर्निंग है हम्म। वो फंडामेंटल्स के। आई वांट टू सी दैट कि रिजल्ट्स पे कैसे स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं, वो ओके। उनके फंडामेंटल्स से उनके मूवमेंट पे क्या फर्क आता है। अब मैं वो सीख रहा हूँ। टेक्निकल्स इज आई थिंक मैंने, हाँ। टेक्नो फंडा अप्रोच पे जा रहे हैं, मोर ऑफ दैट ऑफ रिसेंट, दैट आई कैन से। और क्या रीजन था इस पे जाने के? क्या टेक्निकल अकेला आपके लिए काम नहीं कर रहे, या like, उतना आपको नहीं दे रहे, या यू जस्ट आप एक बैच ऐड करना चाहते हैं एक चीज, कि भाई ये और चीज अपने ट्रेडिंग में एक एलिमेंट ऐड कर दो तो रिजल्ट थोड़ा और बेटर हो जाएगा? क्या रीजन आप यहाँ पे आप सोच रहे हैं ऐसा फंडामेंटल ऐड करने का? मैं कहूंगा बाद वाला जो रीजन है, कि थोड़ा और कुछ एड ऑन। हम्म। टेक्निकल्स वर्किंग फाइन, ठीक है, तो वो काम कर रहा है, टेक्निकल मेरे लिए काम कर रहा है। मैं किसी तरह अपने साथ सिंक भी कर लिया हूँ हम्म। कि ट्रेड लेता हूं तो आई हैव सिंक्ड माय सिस्टम विद माय सेल्फ। लेकिन अगर मैं फंडामेंटल्स को देखकर हम्म। और बेहतर कन्विक्शन डेवलप कर सकूं, तो आई थिंक वो एक एड ऑन हो जाएगा मेरी स्ट्रेटेजी में। तो अभी, लेकिन इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, तो आई विल नॉट बी कमेंटिंग मच अबाउट इट कि भाई मैं रिजल्ट देखा और मैंने ट्रेड किया तो मैंने गजब कर दिया। नहीं, हम्म। अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं वो सीख रहा हूँ, तो मैं इस टेक्निकल एनालिसिस के साथ फंडामेंटल को भी मर्ज करने का धीरे से ओके। ट्राई कर रहा हूँ। ओके। अगर वो हो जाता है एंड वर्क्स फॉर मी, तो प्रोबेबली मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूंगा। बट अभी मैं एनालिसिस वाले पीरियड में, अभी मैं ऑब्जर्वेशन बट वाले पीरियड में हूँ, बट जैसे स्टिल मैंने आई, कहा। बिकॉज मुझे ये क्वेश्चन पूछना है ना, मैं जब भी कोई कहता है ना कि मुझे कोई फंडामेंटल से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना मेरा, क्योंकि क्या होता है कि आई आस्क यू दैट क्वेश्चन कि लेट्स से कि आपने कोई फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया स्टॉक पकड़ लिया है, मान लीजिए कि एडलवाइज में बहुत बड़े फंडामेंटल है, ठीक है, बहुत अच्छे फंडामेंटल है, अभी आपकी एंट्री हो चुकी, क्या आपके सेलिंग रूल अभी भी सेम रहेंगे जो आपने बताया, 3 से 5%? ठीक है। यस, तो मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि अब ये मुंह तो आप विदाउट फंडामेंटल भी कैप्चर कर रहे हैं ना अभी, आप समझ रहे हैं मेरा क्वेश्चन? राइट राइट, तो फिर टोटली। या तो अगर आप फंडामेंटल ऐड कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा और, क्योंकि अगर कुछ ऐड हो रहा है तो वो फिर रिटर्न में भी ऐड होना चाहिए। अगर आप अपने सेलिंग रूल जो आप 50% जो एक्सपांसन पे, या 40% के मुंह, या 25% से 25 to 40% के मुंह के आप बेचने वाले हो, आपको ये नहीं लगता कि अगर फंडामेंटल है तो फिर वो उसको थोड़ा और रूम देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक मैं उसको लेकर के आया नहीं हूं कि जैसे जो फंडामेंटली अगर मैंने सेलेक्ट किया स्टॉक, तो हम्म। उसको लेकर के अभी तक मेरे पास कोई साउंड या वैसी स्ट्रेटेजी नहीं है कि अब व्हाट चेंज इट विल मेक। आई डोंट थिंक, क्योंकि इतना आसान नहीं है जो टेक्निकल्स अब मसल मेमोरी बन गई है, एग्जैक्टली। उसको इरेज करके, राइट, उसको इरेज करके और एक नया अप्रोच लेकर के आना कि भाई ये तो फंडामेंटली गुड है, ये तो यहाँ से 10x होगा, राइट। तो नहीं, अभी के लिए तो आई कैनॉट से दैट व्हाट गुड इज इट एडिंग ऑन। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ knowing how the company is doing, how it is working, so yeah, it is a new thing जो मेरे दिमाग में आ गई है। अब आई जस्ट सी कि ये मेरे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं करता है, नेक्स्ट 6 months और 1 year, इफ आई मेरा दिमाग लगाता हूँ, मैं दिमाग खर्चता हूँ कि मैं फंडामेंटल कर रहा हूँ एंड ऑल दैट, और अगर ये फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, तो आई जस्ट लीव दिस थिंग।
राइट? सो अभी मेरा वर्क इन प्रोग्रेस वाला मूड है। अब मैं देखूंगा इफ इट इज वर्किंग फॉर मी और नॉट। दिस इज व्हाट, या नॉट अबाउट यू, दिस इज व्हाट अमेज मी कि ना, लाइक पीपल दे पुट 10 थिंग्स कि इसका अर्निंग बढ़िया आया, इसके में ये कैटालिस्ट है, 10 कैटालिस्ट दे लेट, थीम है, ये है वो, एंड देन व्हाट दे डू, बड़ा बेस है 15% 20% में मैंने आधा मुंह बुक कर लिया। तो ये सारी चीज तो आप विदाउट फंडामेंटल भी, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप, नॉट अगेन नॉट ऑन यू, लाइक ओवरऑल जो मैं देखता हूँ ना कि जहाँ पे कैटालिस्ट ये वो वगैरह लेके आएंगे और फिर उसको 20% 30% पे बेचना है। सो क्यों, अगर आप उसके, अगर वो रीजनिंग है जो आप बता रहे हो, देन माय थिंग इज के बड़ा खेलो ना फिर, अगर आप इतने फंडामेंटल में इतनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आई फील फंडामेंटल ज्यादा लोग टेक्निकल में इसीलिए है बिकॉज फंडामेंटल सबके बस की बात नहीं, जाके चेक करना वो बहुत डिफिकल्ट चीज है। चाहे चार्ट एटलीस्ट इजी आप 3 महीने में कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल चेक करना, आई आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट कि जो फंडामेंटल चेक करते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट है वो फंडामेंटल चेक करना। बिल्कुल, अग्री, टोटली अग्री। बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ कि फंडामेंटल पढ़ना भी डिफिकल्ट है, प्लस फंडामेंटल पढ़ के उस मूव को पूरा कैप्चर करना भी, कैप्चर अगर करना। वो मूव देता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों? और स्पेशली फॉर अ ट्रेडर जो जो अ, बहुत लंबे समय से कुछ दिन के लिए खरीदता है फिर बेच देता है, कुछ दिन के लिए खरीदता है फिर बेच हम्म। देता है, फिर उसको प्रॉफिट दिखते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि उस अर्ज को बाहर करना, कि बात मुझे ये करनी। बुक नहीं करना है। राइट? तो बट स्टिल आई वुड से कि मैं अभी इस पे वर्क ही कर रहा हूँ। हम्म प्रोबेबली इधर इट विल गो आउट ऑफ द विंडो, हम्म 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 राइट, या फिर बाहर ही चला जाएगा मेरे सिस्टम से, या फिर मैं आपके पास थोड़े टाइम बाद आऊंगा और कहूंगा कि अंकुर भाई मैं फंडामेंटल भी ट्रेड कर रहा हूँ और बड़े मूव्स ले रहा हूँ। हम्म। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। आई एम नॉट श्योर कि नहीं, जो कर कैसा रहे हैं ना वो रहेगा। ठीक से टैकल करे, जैसे कि किरण भाव आए थे, उन्होंने बहुत ही सही तरीके से उसको अपने अंदर ले, बिकॉज ही इज नॉट लुकिंग फॉर दैट 10-15% मूव, वो बड़ा मूव प्ले करते हैं, दे लाइक पूरा जो ट्रेड होता है वो पूरा पूरा ट्रेंड कवर करते हैं, बट अदर्स आर व्हाट यू आर लुकिंग, कि आप टेक्निकल भी नहीं रहते और फंडामेंटल भी नहीं रहते, क्योंकि आप कर तो वही रहे जो पहले टेक्निकल पे कर रहे थे, ठीक है। एनीवेज, मूविंग ऑन, लाइक आप अपने कोई लॉस मेकिंग ट्रेड भी शेयर करें कि जहाँ पे आपको कोई लाइक कोई ब्लंडर कर दिया हो और वहां से कुछ सीखो, ऐसा कोई अगर कोई ट्रेड किया आपने। ब्लंडर, अंकुर जी, इफ आई लुक एट माय ट्रेड जर्नल जो हम्म मैं अपना अपने लिए मेंटेन करता हूँ, तो हम्म I don't find any blunders because I have said this my like I said this for myself हम्म कि मैं कभी भी किसी भी ट्रेड पे, दैट इज टू, जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक्सट्रीम लेवल्स पे है, किसी भी ट्रेड पे हम्म। अकाउंट साइज का 1% से ऊपर मैं रिस्क ही नहीं करता। ओके। राइट? 1% ऑफ टोटल अकाउंट। अकाउंट, या, तो मैं वो रिस्क ही नहीं करता। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ फॉर्चुनेटली। हम्म प्रोबेबली बिकॉज आई हैव नॉट सीन दोज ब्रूटल फॉल्स ऑफ, या लाइक द कोलैप्सेस, जहाँ पे स्टॉक, लाइक फॉर फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ, मैंने अभी तक एक भी बड़ा गैप डाउन एनकाउंटर नहीं किया है अपने स्टॉक में, कि मैंने स्टॉक लिया और इट गैप डाउन लाइक 15% और, राइट, 10-15%, अभी तक नहीं हुआ। होगा आगे चल के हाँ, होगा प्रोबेबली, होगा। Definitely. राइट, होगा ही। अब पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं हम अवॉइड करें, तो फॉर्चुनेटली मैंने वो नहीं अवॉइड किया। तो दिस दिस हैज बीन इंटैक्ट अभी तक। तो Okay. अभी तक कोई बड़ा ऐसे ट्रेड्स ऐसे बहुत सारे हुए हैं कि जिनमें हम्म स्टॉप हिट हो गया, विच इज वेरी नॉर्मल। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं जेएसडब्ल्यू इन 5 बता रहा था, राइट, जेएसडब्ल्यू इन 5 बता रहा था, अब मैं यहाँ पे अक्यूमुलेट कर रहा था, इसने मुझे यहाँ हिट कर दिया। हम्म। तो I must have lost around 0.25% or something, 0.3%, जो भी मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ। ऐसे बहुत सारे स्टॉप ट्रेड्स हैं जो यहाँ पे मिल जाएंगे, अगर मैं ट्विटर पे देखूंगा हम्म मेरे, तो लॉस वाले ट्रेड भी मिल जाएंगे कि भाई हम्म ये नहीं चला, और मैंने फिर अपडेट कर दिया होगा कि आई बुक्ड, स्टॉप लॉस हिट, ट्रेड हम्म क्लोज्ड। हम्म सो वैसे मूव्स यहाँ पे, सी, नहीं ये तो चल गया था, ये फ्लैग ब्रेकआउट है, जी, फ्लैग वाला। ये यहाँ से चला, फ्लैग हम्म ब्रेकआउट है, मैं इससे, ये अभी ट्रेड है मेरे पास 14 मई का है। हम्म। प्रोबेबली 1-2 दिन में अगर मुझे ठीक ठाक गेन दिखता है, जो कि मुझे अभी 11-12% दे या रहा है ऑलरेडी। का एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या रहता है बेस में और फ्लैग में, एवरेज होल्ड, क्योंकि आई आई व्हाट आई सी इसके आपके दो एवरेज होल्डिंग हो गई, एक तो जब आप बेस ट्रेड कर रहे होगे,
एक जब आप फ्लैग ट्रेड करते हो तो बेस में कितने दिन आप एवरेज होल्ड करते हो, और फ्लैग में, और दोनों में साइज भी अगर आप डिस्कस कर सके कि आप कैसे साइज करते हो, दोनों फ्लैग में ज्यादा साइज रहता है या बेस में ज्यादा साइज रहता है? साइज मोरलेस सेम ही है। ओके। अगर मैं प्रोग्रेसिव एक्सपोजर नहीं ट्राई कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ अ बिग बेस ब्रेकआउट है, आई एम स्पेकुलेटिंग अ बिग बेस ब्रेकआउट, तो हम्म। माय होल्डिंग पीरियड वेरीज बिटवीन, सॉरी, 3 वीक्स टू 5 वीक्स। ओके। अगर मैं फ्लैग ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूँ, राइट, तो इट इज, सॉरी, इट इज somewhere around 3 to 5 days, ओके। 3 to 5 days. ओके। अगेन इफ इट गिव्स अ फ्लैग ब्रेकआउट, जैसे कि कोचिन शिप में हुआ, तो मैं आपको उस चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो ये मेरा होल्डिंग पीरियड है, एवरेज हम्म। होल्डिंग पीरियड है। बिग हम्म। बेस ब्रेकआउट का 3 से 5 हफ्ता मैं उसको होल्ड करूंगा। फ्लैग ब्रेकआउट है तो 3 से 5 दिन तक उसमें वो अपना मूव दे देता है। साइज पे भी मैं आता हूँ। कोचिन शिप में ये मैंने बड़ा बेस से ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे हम्म। मैंने इसको साइज किया 20-25% ऑफ माई अकाउंट, यहाँ पे 50% बुक किया, तो मेरा जो कुछ पार्ट है वो इस पूरे मूव में कहीं ना कहीं रहेगा। हम्म। मेजोरिटी आई बुक डियर हालांकि। हम्म। हम्म। अब जैसे फ्लैग में भी अगर तीसरा दूसरा तीसरा फ्लैग हो चुका है एक ही मूव में, अगर तीसरा फ्लैग हो चुका है, तो आई थिंक फिर उसके बाद में अगर वो फ्लैग बनाता भी है, तो या तो मैं कम एक्सपोजर से जाऊंगा, या मैं थोड़ा, क्योंकि ये मूव कर चुका है ऑलरेडी, हम्म। हम्म। अच्छा खासा move उसने दिया है। अब ये हम्म। स्टार्टिंग मूव नहीं है, हम्म। राइट। यहां से हम अगर कैलकुलेट करें ऑलमोस्ट 100%, हम्म। इट्स नॉट अ न्यू मूव एनीमोर। तो अगर अब ये साइडवेज जाके फ्लैग ब्रेकआउट देता है तो आई विल ट्रेड इट, नो डाउट, बट प्रोबेबली आई वुड लाइक टू गो विद लेसर। इफ आई एम गोइंग 25%, आई वुड गो 15%, like to go with 15% and hold it for the same 3 to 5 days of late breakout. Right here, ओके। I booked it here completely. सो जैसा आपने बताया, आप बड़े बेस ब्रेकआउट ज्यादा ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो अगर आप हुडको का चार्ट ओपन करें, एंड आई वुड लाइक के कैसे, क्योंकि हुडको में पहले ब्रेकआउट हुआ है, इफ यू सी ऑन अ डे, जैसे पहले जो बड़ा कैंडल बना, ठीक है, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर देयर ऑन, इफ यू आर दैट, बट अज्यूमिंग दैट यू आर देयर ऑन दैट डे, उस दिन पे आपकी एंट्री, कैन यू जस्ट पॉइंट इट आउट, अगर आप नीचे कोई मार्कर लगा सके, एरो मार्कर, On this day, या ऑन दैट डे, विल यू बाय दैट? पहले तो इसको बाय करोगे आप? इज इट राइट राइट सेटअप फॉर यू टू बाय ऑन दैट डे? इज इट अ राइट सेटअप फॉर यू टू बाय ऑन दैट डे और नॉट? yes, yes, it या is the right setup. या सो Yeah. लेट्स से यू आर इन दैट डे, आप उस दिन में आपकी एंट्री हो चुकी है, बट जैसा आप देख रहे होगे ना कि पहले ये बेस के ब्रेकआउट के बाद आगे के 5 से 6 दिन कुछ भी नहीं है, और ऑलमोस्ट एट योर कॉस्ट आ चुका है। सो क्या करोगे ऐसे टाइम पे? लाइक व्हाट विल बी लाइक, विल यू होल्ड इट विथ योर एसएल, और विल ओरिजिनल एसएल, पहले तो ये ओरिजिनल एसएल जो आपने पहले प्लान किया था एंट्री से पहले, या फिर कॉस्ट एसएल से, या आप उसको बेच देंगे? व्हाट यू नॉर्मली, क्योंकि हमने जो अभी तक जो ट्रेड डिस्कस किया ना, वो अमूमन क्या हुआ, ब्रेकआउट ट्रेड से चलते ही गए, लेकिन ब्रेकआउट 20-20 ब्रेकआउट का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये रहता है ना कि कभी कभी, जैसे कि आप JWL भी देखो, नेक्स्ट डे इट वाज डाउन, तो यहाँ पे भी ऐसा है कि 4-5 दिन स्टॉक ने कुछ किया नहीं। अब हो सकता है कि ये 4-5 दिन में बहुत सारे स्टॉक और ब्रेकआउट करे। तो लाइक एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर जो ऑफिस से काम, अपने पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहा है, आप कैसे करोगे इसको, कैसे हैंडल करोगे, आपका क्या यहाँ पे रहता है टेक? Generally, what happens? It is again, I sometimes go very discretionary about it. जैसे फॉर एग्जांपल IRFC में ऐसा हुआ था, जब हमने IRFC देखा था, हम्म। तो जहां से मैंने उसको लिया वहां से इट केम डाउन। Let me go to the IRFC and then we'll come back to Putco, ओके। right? जैसे यहां मैंने इसको लिया था, राइट, इस दिन, और उसके बाद भी इसने 3-4 दिन कुछ नहीं किया। हम्म। 2-3 दिन तो एटलीस्ट कुछ भी नहीं किया, बट बहुत छोटी रेंज में नीचे आता रहा। फोर्थ डे इट गैप डाउन एंड हम्म। रिकवर, राइट। सो आई डिड नॉट डू एनीथिंग ऑन दिस डे। ओके। I didn't do anything. I did not interfere with this trade because it's clear कि मैं इसको एक बड़ा बेस का ब्रेकआउट में यहाँ पे स्पेकुलेट कर रहा हूँ, एंड मैं इसको होल्ड करूंगा।
तो यहाँ पे माइंडसेट क्लियर था, या फिर ये मेरा स्टॉप लॉस ले जाएगा, ओरिजिनल स्टॉप लॉस जो मैंने प्लेस किया होगा 2%, इट विल टेक अवे दैट, तो फिर मैं वहां पे निकल जाऊंगा, निकाल दूंगा ट्रेड को। ठीक है। इन केस ऑफ हुडको, अब चूंकि ये वाला जो स्टॉक है, ये ऑलरेडी आई थिंक ये कितना 10% से ऊपर का मूव दे दिया है इस दिन, 12%, या 12% का फर्स्ट मूव डे, दे या। दिया ऑन अ फर्स्ट डे। अगर ये 12% का मूव दे दिया है, तो यहाँ मेरा माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि मैं इस पे लॉस नहीं लेने वाला। ओके। यहाँ पे मैं अपना ब्रेक इवन पे, सपोज अगर मेरा स्टॉप लॉस, मेरा एंट्री 206 का था सपोज, ऑन द हाई ऑफ 205 का, हम्म। अब मैं यहाँ पे इसको आई प्रोबेबली गेट आउट, मोस्ट ऑफ लाइक 90% ऑफ चांसेस ये हैं कि मैं यहाँ से, अब वो 10% डिस्क्रिशनरी का आई कैन नॉट से, बट 90% आई विल बी आउट ऑन माई ब्रेक इवन, क्योंकि ये रिवर्स होके आ गया है, यहाँ पे एक विक भी बन गया है, लुकिंग एट एवरीथिंग, आई विल प्रोबेबली बी आउट। बट इफ इट सेट्स अप अगेन, आई एम अगेन रेडी टू एंटर। वाइट वाइट। हाँ, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने बाय किया, दे हिट मी आउट, दे अगेन सेटअप, आई अगेन एंटर। उसका भी रिसेंट एग्जांपल मैंने बताया, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। मैं एक्यूमुलेट कर रहा था, उसने मुझे स्टॉप आउट किया, मैं फिर वापस, वो मेरे वॉच लिस्ट से बाहर नहीं गया, एंड आई अगेन एंटर्ड इट एंड सिटिंग ऑन 11% ऑफ गेन्स, राइट। तो यहाँ पे ये सेटअप हुआ। अब चूंकि इसने यहाँ पे लोगों को निकाल दिया है, इट रिसेंटली केम इनटू माय रडार, और मैंने इसको इस दिन पे लिया है, इट इज पार्ट ऑफ माय होल्डिंग राइट नाउ। यहाँ पे आई एम ट्रेडिंग इट, यहाँ ये होगा, ये भी होगा। जस्ट अ सेकंड। आप क्या प्रिफर करते हैं ज्यादा, बेसिस और मिनी बेसिस? व्हाट डू यू प्रिफर ट्रेडिंग मोर, और क्यों? व्हाट इज द आई एम रीजन? सॉरी, आप बड़े बेसिस ज्यादा प्रिफर करते हैं ट्रेड करना, या फ्लैग्स, एंड क्यों? वट एवर यू पिक, अगर दोनों में से एक पिक करना हो आपके लिए, तो क्या ज्यादा प्रिफर करोगे और क्यों? आई थिंक बड़े बेस आई प्रेफर। ओके। अगर प्रेफरेंस की ही बात है, तो हम्म। मैं बड़े बेस ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको एक स्टॉक ऐसा मिल गया है जो हम्म। नेक्स्ट कुछ मंथ्स के लिए, वी कैन हम्म। से एक दो एटलीस्ट, जैसे मैंने कहा 3 से 5 वीक का मेरा होल्डिंग अवधि है उसका, तो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ आई हैव दिस स्टॉक जिसमें हम्म। पोटेंशियल है कि वो 50 60 70% जा सकता है, जैसे ओके। कोचिंग शिप 100% चला गया। या ठीक है। या। तो मैं उस एक स्टॉक में ज्यादा दिमाग लगा सकता हूँ, मैं उस एक स्टॉक के प्राइस एक्शन को अच्छे से स्टडी कर सकता हूँ उसके। अब चूंकि वो बड़े बेस का ब्रेकआउट है, तो वो भी बीच बीच में फ्लैग्स तो बनाएगा ही, तो मैं उसके फ्लैग ब्रेकआउट ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर गॉट इट, गॉट करूँ, इट। राइट। या। तो उसका प्राइस एक्शन तो मैंने कोचिंग शिप में ऐसा किया, मैंने टाटा इन्वेस्ट में ऐसा किया, मैं जो भी हम्म। ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा मोटिव ये है एक बड़े बेस का ब्रेकआउट मिल जाए, उसका वो ब्रेकआउट तो आई वांट टू ट्रेड, उसके फ्लैग्स भी मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। तो आई वुड से और दैट्स हाउ एट अ सी टाइम इट। आपकी कितनी पोजीशन ओपन रहती है, लाइक एक वन पॉइंट, एट वन गिवन टाइम आपकी ओपन पोजीशन कितनी रहती है? 5 6 8 10, कितनी पोजीशन आपकी ओपन रहती है? नॉर्मली इट्स 5, 5। नॉर्मली, ओके। या इट्स अराउंड 5, सो अराउंड 20% एंड साइज, 5 पोजीशन। yeah, around 5. हम्म। Sometimes it's very less when I'm too concentrated, तो वो 4 पे भी हो जाती है, 25% 4 में लगा दिया तो हम्म। 4 चल रहे हैं। एंड समटाइम्स when I'm giving progressive exposure, जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी अगेन गो टू जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। अगर हम एक करेक्शन के बाहर, करेक्शन से आ रहे हैं और मैं एक ब्रेक से आ रहा हूँ, जहां पे सी सपोज इस करेक्शन में वटेवर जहां पे मेरा पोर्टफोलियो था वहां से जो भी बुक हुए, मार्केट डाउन ट्रेंड में आया और मैं अपने स्टॉप्स हिट हुए, नाउ आई एम सिटिंग ऑन कैश एंड ऑन अ ब्रेक। अब मैं जब दोबारा आऊंगा, तो मैं छोटा स्टार्ट करना चाहूंगा, छोटा छोटा पोजीशन बिल्ड करना चाहूंगा, तो वो प्रोग्रेसिव एक्सपोजर है। तो उस समय में हो सकता है कि इनिशियली व्हेन आई स्टार्ट, तो वहां पे कभी कभी 6 7 पोजीशंस भी हो जाती हैं, क्योंकि मैं छोटा खरीद रहा हूँ। मैंने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सेटअप मिला, मैंने इसको भी खरीद लिया, फिर मुझे चेन्नई पेट्रो में कुछ दिखा, मैंने वहां भी एक छोटा पोजीशन बनाया, फिर जहां मुझे फॉलो अप बाइंग दिखता है, वहां मैं कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देता हूँ,
कि मैंने उसको और ऐड कर लिया और जो नहीं काम कर रहा है उसको निकाल दिया। ओके। तो तो जब प्रोग्रेसिव बाइंग होती है तो शायद वो 6-7 तक चला जाता है। हम्म। जनरली इट्स नॉट मोर देन 5। सो अंकुर जी, दैट्स मोर और लेस आई हैव शेयर्ड माय स्ट्रेटजी, जो भी मैं स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ ओके। कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड चाहिए, एक बाइंग फोर्स चाहिए, और एक बड़ा बेस अगर मुझे दिखता है तो हम्म। मैंने एग्जीक्यूशन के बारे में बात किया कि मैं एग्जीक्यूट कैसे करता हूँ। वो जब एक बड़ा बेस करेक्शन के बाद वापस बाहर आ रहा है, अपने मूविंग एवरेजेस को क्लेम करता है, हम्म। वहां पे वो टाइट हो रहा है, वहां कहीं पे मैं देखता हूँ कि मुझे अपना एग्जीक्यूशन मिल जाए। एक टाइट रेंज का दिन हो, नेक्स्ट डे अगर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिलता है, मैं वहां बाय करूंगा। और मेरा एवरेज होल्डिंग पीरियड, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया, बड़ा बेस ब्रेकआउट है 3 to 5 वीक्स, अगर फ्लैग ब्रेकआउट है अगेन 3 to 5 डेज, तो ये वहां है। ट्रेड मैनेजमेंट मैं वो पॉइंट कैप्चर करना चाह रहा था कि जैसे मैंने पहले बताया कि मैं बहुत माइक्रो मैनेजमेंट भी करने लगा था बीच में, हम्म। और मैंने पाया कि भाई मैं अपनी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को बीच में ही क्लोज कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने 15 मिनट के चार्ट पे एक रेड कैंडल देख लिया था। हम्म। और सेंस डज इट मेक? तो ट्रेड मैनेजमेंट में मैंने वहां से एक पॉइंट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो मैनेज नहीं करना, आपको पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस लाइफ, कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं हम्म। बिफोर एंटरिंग। आई नो, और दो ही चीज करता हूं तो मुझे ज्यादा क्लैरिटी है। बड़ा बेस ब्रेकआउट है तो आई नो कि 3 से 5 हफ्ते तक मैं कोशिश करूंगा कि होल्ड करूं, है ना। जैसे होता है, हिट हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में ही, अब मैं थोड़ा बार बार चेंज करता रहता हूँ, मैं चार्ट पे आ जाता हूँ, लेकिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में ही ये वाला ट्रेड मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहाँ से एक अच्छा खासा इसने मूव दिया, फिर ये करेक्शन में चला गया, हम्म। यहाँ ये वापस इसने अपने मूविंग एवरेजेस को क्लेम किया। तो हम्म। यहाँ इस दिन का मेरा बाइंग, हम्म। एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है, एक छोटा सा रेंज है, मैं प्ले करना चाहता हूँ, मैंने एक पोजीशन बिल्ड किया, मुझे इसने अच्छा सा एक मूव दिया, हम्म। आई थिंक मेरा यहाँ का भी बाइंग होगा। तो 3-4-5 दिन में इट्स अप 22%, आई थिंक। हम्म। मैंने 50% पोजीशन पे इस दिन 50% पोजीशन क्लोज कर दिया, क्योंकि इसने अपने ओपन अपना जो ओपन प्राइस था, जिस प्राइस पे ये ओपन हुआ, उसको भी ब्रेक किया, और प्रायर प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के भी नीचे आ गया, तो यहाँ कहीं मैंने इसको बुक कर दिया। तो मेरा हम्म। जो 50% था टोटल पोजीशन का, वो यहाँ पे बुक हो गया आधा, एट अ गेन ऑफ आई थिंक अराउंड 18-20%, जो भी यहाँ पे मुझे मिला होगा 18% के गेन पे मैंने उसको बंद कर दिया। रिमेनिंग 50% केम डाउन एंड हिट मी अप लाइक दिस। अब वो आउट हो गया, अब वो ये ट्रेड नहीं चला उतना लंबा हम्म। जितना कि अब इसने मुझे इस वाले बेस ब्रेकआउट ने मुझे फ्लैग ब्रेकआउट ट्रेड करने का मौका ही नहीं दिया। हम्म। Which happens so then I was done, then it again went into my watch list यहाँ कहीं पे, और फिर मैंने आपको बताया इसको मैंने बाद में ट्रेड किया। तो कहने का मतलब है कि ट्रेड मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू स्टिक टू व्हाट यू हैव डिसाइडेड। आपको जो अपने आपने डिसाइड किया है ट्रेड लेने से पहले, उसको फॉलो करना है, रिलीजियसली फॉलो करना है, दैट्स इट। तो ये ट्रेड मैनेजमेंट है। माइक्रो मैनेजमेंट मैं नहीं करूंगा, मैं डे के चार्ट पर ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं डे का ही चार्ट देखूंगा, बार बार इंट्राडे जाके नहीं देखूंगा कि हम्म। भाई 50 मिनट में वो क्या कर रहा है, आधे घंटे में वो क्या कर रहा है, वो चाहे जो करे, डे एंड पे वो क्या कर रहा है इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। सेल रूल्स पे जैसे मैंने बात की कि ऑलरेडी। हाँ, वही 3 to 5 डेज में अगर मुझे अच्छा एक 15 से 20-25% के बीच का गेन मिल रहा है तो मैं कुछ तो बुक करना चाहूंगा, ठीक है। और फ्लैग ब्रेकआउट पे आई वांट टू बुक मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग। तो ये कुछ सेल रूल्स हुए मेरे, ठीक है। नाउ स्कैन्स आई यूज, मैंने इनको सबसे एंड में रखा है, जो स्कैन में यूज करता हूँ, क्योंकि ये सबसे एंड का ही पार्ट है। इट इज नॉट द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। यूजफुल, वेरी यूजफुल, नॉट डिनाइंग कि आपको थोड़ा टाइम बच जाता है, आप जल्दी स्कैन कर सकते हैं, वो सब ठीक बात है। लेकिन अगेन, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मैं आपको एक स्कैन दे दूं और आप उस स्कैन से पैसे बनाने लग जाओगे, नॉट हैपनिंग, राइट। सो सो आई केप्ट इट इन द लास्ट, इन द एंड। तो मैं बता देता हूँ क्या स्कैन्स मैं यूज कर रहा हूँ। सो जैसे मैंने बताया, मैं जॉब के साथ कर रहा हूँ, तो मैं वीकली स्कैन करता हूँ वीकेंड्स में,
और डेली भी करता हूँ। तो डेली में क्या करता हूँ वो आई टॉक। तो एवरी वीकेंड मैं ट्रेडिंग व्यू का जो स्क्रीनर है, हम्म। वहां पे जो ऑप्शन आता है, उस पे जा करके मैं वो स्टॉक्स को फिल्टर करता हूँ जिनमें 25 to 30% का मूव है इन लास्ट, इन a span of last 1 month to 3 months, depends। if I'm filtering 1 month परफॉर्मेंस, तो मैं 20-25% का फिल्टर डाल देता हूँ। और पिछले 3 महीने में जो 30% से ऊपर कुछ स्टॉक्स हैं, आई वांट टू सी वहां क्या हो रहा है, तो ये मैं एक यूज करता हूँ। फिर स्टॉक्स नियर 52 वीक हाई जोन। अब 52 वीक हाई जोन के 15-20% के आसपास में जो स्टॉक्स हैं, उनको भी आई वांट टू सी। तो आई स्कैन देम। एंड 3 वीक टाइट क्लोजिंग, आई थिंक ये, आई डोंट रिमेम्बर, एज आई सेड, मैंने कहीं कहीं से चीजें एक्वायर की। ये 3 वीक टाइट क्लोजिंग या तो आप ही के चैनल से या आप ही के ट्विटर हैंडल मैंने लिया है। ये मैं वो अपना चाटनी पे एक मैंने सेव कर लिया है इसे अपनी प्रोफाइल पे। मैंने बनाया नहीं है, मैंने सेव कर लिया है एंड आई यूज इट, राइट। तो वीकली मैं ये स्टॉक्स स्कैन करता हूँ, ये तीनों, और इनमें देखता हूँ। अगर मुझे जो भी अच्छा लगता है, I add those names to my focus watch list. Now on daily basis, this is this is doing wonders for me. Inside bar is my favorite. Like अगर मुझे टाइट रेंज में इनसाइड बार मिल रहा है, तो इट्स एन एड ऑन फॉर मी। तो लेट स्टेज इनसाइड बार, मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा, देयर इज दिस वीडियो अवेलेबल ऑन हिज चैनल। अंकुर जी के चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, गो एंड वॉच इट। एंड उन्होंने इसका एक स्कैनर जो ऑलरेडी रेडीमेड स्कैनर है, वो भी दिया है। गो एंड वॉच इट, यूज इट। आई थिंक यूल फाइंड गुड नेम्स, वेरी गुड नेम्स। तो ये मेरा स्कैनिंग है, यही मैं यूज करता हूँ। ठीक है। तो ओके या। जी जी। तो तो यही दो लास्ट टाइम। तीन, मे भी एक या दो सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि जरूर। निशित जी, अभी भी ऐसी कोई जगह है, लाइक इज देयर एनीथिंग एल्स, लाइक जहाँ पे अभी भी आप कोई चैलेंज फेस कर अपनी ट्रेडिंग में कि भाई यहाँ यहाँ पे मैं मुझे कोई इंप्रूवमेंट करना चाहिए? Many, I've been many, like again, like so many times it happens. The अभी वो मैं प्रैक्टिस में हूँ हम्म। कि मैं इमोशनल जो एस्पेक्ट है उसको कंटिन्यूस, अभी भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो अब मैंने परफेक्टली उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अभी हम्म। भी आई एम एवरी डे आई स्ट्रगल टू होल्ड ऑन टू माय इमोशंस। हम्म। स्टॉक 20-22% ऊपर चला जाता है, 15% ऊपर चला जाता है 3 दिन में। अब वो, जैसे मैंने कहा कि मेरा क्राइटेरिया है कि 15 to 18-20% का मूव मैं बुक कर लूं। अब हम्म। अगर तीसरे दिन स्टॉक मुझे 13% दिख रहा है, अब वो हम्म। 2% का गैप है, आई वॉन्ट टू बुक इट, हम्म। राइट। सो द स्ट्रगल, सो समटाइम्स आई डू, समटाइम्स आई डोंट। इट जस्ट डिपेंड्स एंड वेरीज, क्योंकि मार्केट इतना डायनेमिक है ना हम्म। कि मार्केट कंडीशन ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल। आप, आपका ट्रेड्स कैसा चल रहा है पिछला कुछ, मार्केट इन दिनों कैसा चल रहा है। समटाइम्स यू जस्ट वांट टू बुक अर्ली, राइट। वो एक कुछ इंडिकेशंस आते हैं, अब वो कहाँ से आते हैं मुझे नहीं पता। कोई ना कोई एक इमोशन, एक इंडिकेशन आएगा, अरे यार आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू बुक दिस, 13% मिल रहा है, कुछ तो ले ले, है ना। सो द स्ट्रगल, इट 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 जस्ट गोज ऑन। तो और यही कुछ है। या तो मैं जो ट्राई कर रहा हूँ मैं बताऊं, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि आई वांट टू मेक रूल्स फॉर एवरीथिंग। मैं उस पे जा रहा हूँ। डिस्क्रिशनरी माइंड जो है मेरा वो अभी भी चलता है, तो आई वांट टू ओवरकम एज मच एज आई कैन। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो ये एक चीज है जिसको आई वांट टू ओवरकम, डिस्क्रिशनरी माइंड। निश्चित जी, क्या ऐसी कोई चीज होती, जैसे आपने, जैसे आपको अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया पहले दिन, अगर आपको किसी ने बताई होती, आप ये विश करते कि यार किसी ने मुझे ये चीज पहले दिन बता दी होती ना, तो मेरा ट्रेडिंग और अच्छा, या आपकी जर्नी और इजी हो जाती? पहले पहले दिन अगर मुझे कुछ पता लगाना था तो वो ये था कि ऑप्शंस करना ही नहीं चाहिए। यू शुडंट डू ऑप्शंस। सो, और एटलीस्ट बिना नॉलेज के तो उधर देखना भी नहीं चाहिए। हम्म। दिस इज वन थिंग दैट आई शुड हैव लर्न। तो ये एक चीज है। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक it was not a joke, by the way। It is a very, on a very serious note, I want to say that if you are a new person to the trading, don't look at options, futures, right। तो अगर मुझे पता होता
कि मेरा एक्सपोजर जो है, क्या होता है कि आप जब ऑप्शन में फ्यूचर ट्रेड करते हो, आपका कैपिटल तो है 1 लाख, आप एक्सपोजर ले रहे हो 10 लाख वाला, ठीक है। इफ इट गोज 1% अगेंस्ट यू, तो आपका 10% अकाउंट साफ हो जाएगा। इतना भी कैलकुलेशन वाज नॉट देयर व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ। तो ये एक होना जरूरी है। बाकी स्विंग ट्रेडिंग में मैं कहूंगा कि मेरा जो लर्निंग कर्व है, इट्स कंपैरेटिवली, आई पर्सनली फाउंड लाइक फाइंड इट वेरी लेस शॉर्ट, या व्हेन आई आई एम वेरी एग्री विद शॉर्ट। दैट, आई एग्री विद दैट, आई एग्री विद दैट। ऐसा जैसे मैंने आपको बताया कि 2022 में मैंने सिंसियरली ये तय किया कि मुझे कैश ट्रेडिंग करनी है। हम्म 2022 मैंने उसको दिया पूरा। उसमें मैंने सब कुछ किया, जैसा मैंने बताया, मैंने एक्सटेंडेड स्टॉक्स खरीदे जो एक्सटेंड हो चुके हैं, मैंने उनमें बाय किया क्योंकि वो एक ब्रेकआउट दे रहे हैं, ठीक है। वहां पे अपनी गलतियां की। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि मार्केट कैसे फंक्शन करता है। लेकिन अगर फिर भी मैं कहूं कि कोई एक चीज जो थोड़ा और पहले पता लग जाती, तो वो है ये। बिल्कुल। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं वो मिस्टेक्स भी नहीं करता कि मैं एक्सटेंडेड स्टॉक्स हम्म को खरीद रहा हूँ, फिर मैं हम्म एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं उनको होल्ड करके बैठा हुआ हूँ कि अच्छा वो अब चूंकि वो एक्सटेंडेड है, मैंने खरीदा, वो नीचे आ रहा है, हम्म अब मैं बैठा हुआ हूँ। तो रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो समथिंग जो मैंने बाद में सीखा, इसी के साथ में सीखा जब बाद में। तो पहले मेरे स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े होते थे, हम्म है ना। और अ, सच कहूं तो होते ही नहीं थे। जब मुझे थोड़ा लॉस बड़ा ही दिखने लगता था, तो मैं बोलता था कि अरे यार, ये तो रहने दो। चला गया, राइट। तो जो इसी स्लाइड में है सब कुछ, मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ या जो भी मेरे आंसर्स मिसिंग है, ये मुझे पहले पता होता और ये सवाल मैंने पहले पूछ लिए होते, तो शायद मेरा लर्निंग का और शॉर्ट हो जाता। बट या नेवरदलेस, जब भी देर आए दुरुस्त आए। वन मोर क्वेश्चन निखिल, निशित जी। यस। मोस्ट ऑफ द जो लोग स्टॉक मार्केट में रहते हैं, उनका ये क्या एस्पिरेशन रहता है कि भाई मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में जाऊंगा, जॉब नहीं करना। क्या आपका भी ऐसा कुछ है? और आप ये सोच रहे हैं कि आप अच्छा ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपके पास एक स्टेबल इनकम है, और आपको उतना टाइम भी देने की जरूरत नहीं स्टॉक मार्केट या ट्रेड के लिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? एग्जैक्टली, द लेटर वन, कि मैं इसको फुल टाइम ट्रेडिंग, मतलब फुल टाइम जॉब या फुल टाइम बिजनेस एज अ फुल टाइम थिंग, आई डोंट वांट टू सी इट एज अ फुल टाइम थिंग। उसका रीजन है कि आई डोंट वांट टू बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन समथिंग जिसका आउटकम जो है वो बहुत ही मतलब वोलेटाइल है, आई नो, वोलेटाइल है। हाँ, वॉलेटाइल है। हम्म यू नेवर नो, हम्म like 1 month can go really well for you, हम्म next month you are maybe down in a drawdown. Now I don't want to take that pressure कि मुझे मार्केट से पैसा जनरेट करके हम्म आई वांट टू रन माय हाउस होल्ड, या है ना। अगर तो वो मैं प्रेशर नहीं लेना चाहता। और जब मुझे 1-2 घंटा दे के मार्केट को, जैसे 1 घंटा में शुरू में, जैसे मैंने बताया, सुबह 9 से 10 में देता हूँ। उसके अलावा 1-2 घंटे, 1 घंटा डेली, अगर वीकडेज में देखूं तो 1 घंटा शाम को लगता है स्कैनिंग वगैरह करने में, वॉचलिस्ट बनाने में। वीकेंड्स में मैं 2-3 घंटा देता होगा। तो जब इतने टाइम में आई एम डूइंग वेल, व्हाई पुट मोर टाइम एंड एंड मेक इट इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर माई सेल्फ। अगर ओके। मुझे, हाँ, अगर मुझे मतलब पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मैं स्क्रीन टाइम बढ़ा दूंगा तो मेरे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो सॉरी, मैं कम है तो एक ठीक। एक एक करके क्वेश्चन और करते जा रहा हूँ बिकॉज मेरे ना पहली बार ऐसा कोई लगा कि भाई ये पार्ट टाइम ट्रेडिंग के साथ या फुल टाइम जॉब के साथ आप ट्रेडिंग, तो क्या आप अगेन कुछ, मैं उस एंगल से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक जॉब से देख रहा है ये वीडियो, लाइक पार्ट टाइम जो जॉब करे, फुल टाइम जॉब करे, पार्ट टाइम ट्रेडिंग करे, उनके मन में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, उस एंगल से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। लाइक आपकी अंडरस्टूड। जो मंथली जो सैलरी होती है, तो हर मंथ क्या आप उसमें से ट्रेडिंग में कोई भी अमाउंट ऐड करते जाते हैं? लाइक लेट्स से कि अब मैं अच्छा ट्रेड कर रहा हूँ, तो या लाइक वट एवर, लाइक यू कीप एडिंग मनी फ्रॉम योर सैलरी, सैलरी से, क्योंकि आपका ट्रेडिंग अकाउंट, आई फील कि आपका हाउस होल्ड जो रन होगा वो आपकी सैलरी से हो जाएगा। लेकिन सैलरी से क्या आप ट्रेडिंग में ऐड करते रहते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि आप अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हैं और यू वांट टू मेक मोर मनी फ्रॉम दैट, जब आप अच्छा कर रहे हो, तो डू यू ऐड मोर मनी इन योर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम योर सैलरी? यस, आई डिड इट। अभी तो आई हैव नॉट, लाइक नॉट एवरी मंथ, हम्म नॉट ऑन अ मंथली बेसिस। सो सी, इट ऐसा भी नहीं है कि मुझे अभी बहुत सारा समय हो गया है मार्केट में। अभी मुझे कुछ दो, अगर मैं ठीक से ट्रेडिंग करने की बात करूं तो मुझे कुछ 2 साल हुए हैं। तो इस हम्म 2 साल में
प्रॉफिटेबल होने की जर्नी में मैंने एक लाइक जिस कैपिटल से मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद आई एडेड एक बड़ा सा चंक। मैंने बड़ा सा, मेरे लिए वो बड़ा है, आई डोंट ट्रेड अ बिग अकाउंट। तो अ, एक मेजर जो जितना कि मेरे को एक कैपिटल बनाना था कि भाई इतने कैपिटल से आई वांट टू ट्रेड, वो मैंने वहां पे ऐड कर दिया था। इनिशियल कैपिटल के बाद एक ठीक ठाक सा साइज मैंने वहां पे डाला। उसके बाद नहीं, रेगुलरली तो आई एम नॉट एडिंग ऑन टू टू दैट। आई वांट टू ग्रो दैट अकाउंट। प्रोबेबली प्रोबेबली दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, आई डोंट नो, आगे जाके अगर मैं ऐड करूं तो, पर अभी तो आई डोंट कीप एडिंग, नो। या बट दिस हैपेंस कि आई हैव टू ब्रोकर्स, लाइक टू डीमैट अकाउंट्स। तो एक तो ये जो है, जो जिसमें मैं अपना स्विंग ट्रेडिंग ये वाला स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ, जो मैं आपको बताया अभी इस पूरे इंटरव्यू के दौरान। आई हैव अनदर अकाउंट जहां पे अगर मेरे दिमाग में कुछ नया आता है या मेरी ऑब्जर्वेशन में कुछ नई चीजें बहुत आने बढ़िया, लगती है, बहुत बढ़िया। तो मैं उसमें एक छोटा कैपिटल डालता हूँ अपने मंथली सैलरी से, या वो हम्म एक बार डाला, दो बार डाला। तो ये मैंने कुछ किया है पिछले कुछ महीनों में, और मैं वहां करता हूँ। और हम्म वो जो नए आइडिया हैं, जो नए तीर आ रहे हैं मेरे पास, उनको मैं वहां लगाता हूँ, हम्म ताकि ताकि ये अकाउंट अफेक्टेड ना हो। क्योंकि हम्म जैसे ही अगर मैं अपना अकाउंट को मैं कोई दूसरी स्ट्रेटजी लगा के उसके रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर दूंगा, तो इट माइट इम्पैक्ट माई साइकोलॉजी, कि यार मेरा अकाउंट में इतना था, मैंने कुछ नया हम्म। तीर लगाया तो ऐसा हो गया। ठीक है, सो आई डोंट वांट दैट। तो अगर मुझे कुछ नया करना होता है तो यस, वो मैं उस छोटे अकाउंट पे जाता हूँ, और उसमें थोड़ा पैसा अपने सैलरी से निकालता हूँ, डालता हूँ, वहां करता वो आपका लेबोरेटरी अकाउंट है जहाँ पे आप इनोवेशन करते हूँ। हैं। राइट, बहुत राइट। बढ़िया, आई बहुत बढ़िया। आई जैसे बहुत अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल एमटीएफ, हम्म। मार्जिनल ट्रेडिंग फंडिंग। तो एमटीएफ वाला जो मैंने शुरू किया, तो मैंने वो वहां किया कि भाई मैं ओवर एक्सपोज होके काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। So, ऐसे में जो भी प्रयोग करता हूँ वो मेरी लेबोरेटरी है, एज यू सेड। ओके। सो या या निशी जी, व्हाट लाइक लास्ट जो मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में पूछता हूँ, अपने गेस्ट से पूछता हूँ कि व्हाट विल बी दैट वन एडवाइस जो आप, हालांकि आपके अभी 3 साल ही हुए मार्केट में, लेकिन 3 साल के आपके एक्सपीरियंस से आप अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे आपके एक्सपीरियंस? मेरे एक्सपीरियंस से मैं पहली एडवाइस तो ये दूंगा, या जो मैं पहली बात कहना चाहूंगा वो ये, कि डोंट गिव अप। इज लाइक स्टे इन द फील्ड इफ यू रियली वांट टू ट्रेड। अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रेडर बनना ही है, और आपको अच्छा लगता है ये काम, और आप बने रहना चाहते हैं, तो बने रहिए, सीखते रहिए। देर इज नो, इन माई लास्ट साइड एज आई सेड, लर्निंग गोज ऑन, आई एम स्टिल लर्निंग। मैं भी सीख रहा हूँ। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी, जैसे अब मैं रिटर्न बनाने लगा हूँ, मैं 15% वाले मूव कैप्चर कर लेता हूँ, राइट। तो नेवर बी दैट पर्सन की अब मेरा हो गया, जो मेरे को सीखना था वो सीख लिया। सेकंड थिंग, बी ऑब्जर्वेंट। और ऐसा ऐसा नहीं है कि इफ आई कैन डू इट, लाइक अ पर्सन लाइक मी कैन डू इट, तो आई थिंक कोई भी कर सकता है, प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप आपकी विल पावर है, आप विलिंग है वो करने के लिए। तो बी ऑब्जर्वेंट, गिव योर 100%। तो मुझे लगता है कि आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, जो भी स्ट्रेटेजी है। सीखने के इतने तरीके हैं, अंकुर हम्म। जी मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से नहीं आपको कंटेंट मिल सकता, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। यू जस्ट हैव टू बी सीकिंग इट। आपको उससे सीख करना है, राइट। तो ये दो ही चीजें हैं जो अभी मैं कहना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, या जो जो मेरे साथी हैं नए सीखना चाहते हैं। आप लगे रहिए। या ठीक, ओके। यस, सो थैंक यू निशित जी फॉर योर टाइम, और आई होप कि ये लोगों को कुछ वैल्यू ऐड करेगा, एंड मे बी इन फ्यूचर फिर कुछ और हुआ तो आपसे जरूर से कनेक्ट करेंगे और आपको फिर से इनवाइट करेंगे, ठीक है? जरूर जरूर, आई होप दैट टू। थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर योर Thank you so टाइम। much, Anku bhai, for having me once again. And I'm greatly, greatly inspired from you. So I'm very grateful doing this. So once again, thank you.